ہم سب کے سب جو ہیں یہاں تک کہ جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں نا نبوتوں کے، کلام کے، قدرت کے، ان کی وجہ سے کلام نہ ہوتا. مجھے کلام نہیں آ رہا ہوتا، میں خدا کے سامنے کہ میری بالکل اسٹڈی اس ٹاپک میں اور ایک دم سے ایک دفعہ سے نئی چیزیں کھل جاتی ہیں تو میں آپ کو دیکھتا رہ جاتا ہوں ساری عمر. یہ تو بات پڑی تھی پتہ نہیں لگتا کیونکہ دیٹ از دا ہولی اسپرٹ از دا ٹیچر. اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بات، میری وجہ سے نہیں صرف بات. آئی ایم جسٹ اے پارٹ آف دیٹ تھنگ، ویری اسمال پارٹ آف یور تھنگ. میں آپ سب کا مشہور ہوں. ایک چھوٹی سی مجھے بھائی نے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ خدا کے بہت ہی لرنر خاتمے یہاں، انہوں نے مجھ سے کہا میں تھوڑا سا بیلنس کر دوں پورا کے تعلق سے. میں پورا کی اسٹڈی میں نے نہیں کی کیونکہ میں ٹاپک سے باہر نکلتا. صرف ان کو ایک بات بتا دوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بے شمار چیزیں تھیں جو صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تھی. مثلاً قربانیاں، بکریوں کے دینی، پرانی دینی، یہ کرنا، اٹ واز فار دا اولڈ ٹیسٹمنٹ ناٹ فار نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مجھے پتا ہے، میں اسٹڈی ہے میری، اکتن کو یہ روح کچھ مجھے کرائی، اکتن کو بھی ایسے پورے سے پکڑا کیونکہ زمینیں نہیں کرتا. آئی نو دیٹ. تو وہ جو انہوں نے بڑی امثال میں وہ پرانے زمانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ پورا جو ہے وہ گود میں ڈالا فیصلہ خدا ہوتا. اس وقت یہ میتھڈ کیونکہ روح قدس کی رہنمائی ڈائریکٹ بہت کم لوگ، کوئی نبی جو تھا نا وہ بات کر سکتا تھا. خدا فرماتا بادشاہ نے فیصلے کرنے ہیں، لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے دعا کر کے خدا کرنا پورے ڈالا. دیٹ واز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اور یہ لوگ نئی پیدائش پاتے اسی کے شکریہ تھا پاک کا انتظار کرنا چاہیے دا ہولی اسپرٹ کے. اس کے بعد آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں کہیں پر پورا نظر نہیں آیا. دے ور گائیڈڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. وہ سارے بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، دعا کرتے تھے کسی میجر فیصلے کے لیے، وہ خدا کے حضور میں ٹھہرتے. اور روح القدس نے کہتا تھا کہ آپ اس کو فلاں فلاں کو چن لو اور ان کو میرے کام کے لیے مقرر کرو. They were not doing it because of experience. They were not. وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ میرا ہمارا تجربہ بڑا ہے. وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں اس سارے کے سارے میرے پسندیدہ ہیں، ہم پرانا جانتے ہیں ایسے ویسے. لو they had to ask the Holy Spirit. اور کبھی کبھی جب وہ پوچھ بھی نہیں رہے تھے، روزہ دعا کر رہے ہوتے تھے، منسٹر کر رہے تھے، تو خدا کو ٹھہرے ہوئے ہیں اور خدا کے انہوں نے کہا تیرا باپ میں ہمارے خدا نے کہا کہ سنو یہ دو بندے جن کو میرے لیے مقرر کر ان کو بھیج. وہاں پر پورے کی ضرورت نہیں. There is no need of voting. There is no voting in the Bible. There is no democracy in the Bible. پوری بائبل آپ پڑھ لیں. یہ ایک اور بہت بڑے استاد آ گئے ہیں، بتائیں مجھے کیا ضرورت ہے نئے یا پرانے آدمی میں کی ووٹنگ کی؟ کوئی ووٹنگ نہیں. تھیوکریسی. The Holy Spirit chose Moses. اس کو کہا پیڑا ہے، چنگا ہے، لنگڑا ہے، انا جو ہے، لمبی داڑھی ہے، چھوٹی ہے، چھوٹے قدر ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، آج میں رہن دیا. ایک کچھ کرے گا ملک کنان کی دعوت میں چھوٹی گل، چھوٹی سی مکاشفہ کی گل. اس کا نہیں، اس کی سزا بھی بڑی. جو بڑا خادم ہے اس کی سزا بڑی، یاد رکھیں. جتنا کسی کو دیا گیا اس کے مطابق اس کو جج کیا جائے. اس لیے میں کل بھی بتا رہا تھا کسی کو کہ مجھے خود ڈر لگتا ہے، میں اس لیے تو ٹیچر کرانا ہی پسند کرتا. وہاں لکھا ہوا ہے تم میں سے بہت سے استاد کیا کریں گے؟ کون سے والے؟ آج بھی پڑھ لو، ابھی بول رہی ہے جو بنیں گے سیلف میڈ ٹیچر جو ہیں ان کو ہوگا. جن کو خدا نے استاد بنایا ان کو نہیں ہوگا، ان کو تو خدا نے چن کے استاد بنایا. یہ یاد رکھیں، بیلنس نہیں ہے ٹیچنگ کا نا. لوگ ایک بات ہم اس مجھے معاف کر دینا اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی، میں سارے ٹاپک نہیں کر سکتا پوری ٹیچنگ پوری. اور وہ جو انہوں نے چناؤ کیا تھا وہ انسانی لحاظ سے سوچا کہ یہ سنتے بڑا جو انسان ایک تو چلا گیا. ابھی تک ان کو پاک کا قسمہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک اس طرح سے وہ بیٹھے تھے. حالانکہ پاک ان پر تھا، پاک ان کو سیلے سے وہ موزے کرتے تھے. وہ ایک زیادہ سٹڈی ہے جب ہم کو اس کا ایک سٹڈی پہ بتاؤں گا کیا ہو اس کے طریقے کار اولڈ ٹیسٹمنٹ یہاں میں یہ پوری بہت بڑی ہے، بہت. اس لیے میں معافی چاہتا ہوں تاکہ میں کلیئر کر دیا، تاکہ میں شاید بیلنس ہو گیا جلدی میں نے اس کو کلیئر نہیں کیا. نیو ٹیسٹمنٹ میں یو ول نیور سی قرآن. ہاں کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. کب؟ بڑے ہی مجبوران اپروچ کرنے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتے، بہت مجبور ہو گئے، لیکن اس پہ غلطی کے چانس زیادہ ہے. اگر ہم نے جیسے میں شروع میں بتایا لاٹری میں بندے ہی چار، میں پرنسپل صاحب بات رہا تھا یہ نہیں سر شامل. اچھا ہو زیادہ تھے چھیاں میں نہ پاتا وہ جگہ خدا دسے نہ تو چور کیڑا تے نہ تا نکلا. لاٹری سے کسی کا بھی نکل سکتا. آپ کو بتانا چاہیے اس لیے آپ لاٹری کی ضرورت نہیں. آپ ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے،
रूह और अकल से भी, तजर्बे से भी, समझ से भी, और बाइबल की तालीम के मुताबिक। आमीन। और अपने आप को टेस्ट सिर्फ नहीं करना, बात की हो जी हमने बात से जो दिल होएगा वो जी बात ये है। ये भी याद है आपको, ये इतनी गहरी बात है, आवाज के ऊपर चलना। मैंने बड़ी मार पाई, मैं नहीं डरता बताते, मेरे से गलतियां हुई हैं। आप जान, मैं इतना मानते हैं दुनिया मुझे मान इसके फजल से, बड़े बड़े खादिम मुझे मानते, मैं खुदा के फजल से कह रहा हूं, गोरे काले बड़े बड़े मुझे सिर्फ मानते, कहते हम किसी को नहीं अंतर, 2-2 लाख। बट आई नेवर से आई एम अफ्रेड ऑफ गॉड। मैं कहना गलती हो जाती है, चंगे फिर बंदे को गलती मेरे साथ नहीं। मैं आपको आगे चल के जब आएगा वक्त में समझाऊंगा कि कैसे गलती करती है, कैसे। इट्स नॉट वेरी इजी टू मूव इन द स्पिरिट, इन द होली स्पिरिट। बेसिकली पाक रूह में मूव करना इतना भी नहीं मुश्किल। अगर टीचिंग सही है, तजर्बा सही है, करैक्टर सही है, दुआ व जिंदगी है, खुदा में कायम हो, खुदा के साथ और उससे मामूल हो, गलती के चांस बिल्कुल नहीं रहते। झूठी नबूवत के तो कोई चांस नहीं रहता, झूठी गाइडेंस तो कभी शैतान करता है। लेकिन आम जो एवरेज बनता है उसको बहुत मारेगा। मैं नहीं, आई वाज सो नाइटेड, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल नो क्या हुआ था। खुदा ने पाकिस्तान में, खुदा ने क्या, मेरी वजह से नहीं हुआ था। यहाँ ग्रुप से दुआ करने भाई साहब का इनका एक ग्रुप होता था, कहते हैं हमें नाम आपका पता क्या जब मैं आया, फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया, कहते हम कहते हैं साथ बिशप खुद ही बना। उन्होंने कहा खुदा ने कहा ये है बंदा, रूल खुद इसका काम था, लोगों के रोजे थे, दुआएं थी, मैंने कुछ नहीं किया उसने। आई जस्ट स्टूड देयर बिकॉज़ गॉड न्यू कि किसको मैं कहां कौन सी चीज की इस्तेमाल करता। और मैं बेइल्म था, बेसमझ था, और अभी तक बेइल्म हूं, क्योंकि मैं स्टडी नहीं कर सकता। मेरे नहीं है गिफ्ट, गाड़ी ज्यादा चल मैं भाई आप जाऊंगा तो मुझे सारा कुछ नहीं, और मुझे नहीं आता मैं बट द रेवल्यूशन आई है, द वर्ड आई नो, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं रुकता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं तो नहीं ये बात ठीक है, मुझे खुदा समझाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है आप सबकी दुआओं से इंस्टेंटली मेरे पे मुकाशफा हो जाए और पूरी किताब में सुन। मेरा ईमान है कि ये आपके लिए हो गया है। आज चौथा जो है रूहानी इम्तियाज के तरीके क्या है, कैसे कैसे रूहानी इम्तियाज करना, मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। उसी पेज पर पहले पारी, ये हमारा आखिरी, फिर हम इस पे आएंगे। कभी यार ये 4 जो इसकी एक पूरा चैप्टर बन के 2-3 चैप्टर इसके बन गए। अच्छा देखिए रूहानी इम्तियाज के तरीके क्या है। कौन सा इम्तियाज जी? रूहानी इम्तियाज। अब हम रूहों की बातें करें, हालेलुया। आपने देखना है कि रूहानी इम्तियाज, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बता दूं, बाइबल में पहले मैं 3 बताता रहा हूं, 4 लफ्ज है रूह के लिए, और इंग्लिश में कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए? 4 किस्म की रूहों का। पहले मैं 3 ही बताता हूं। जब आपने मुझ पे खोला तो मैं ठीक है, अभी मैं वाला नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लेंगे। अभी मैं इन टॉपिक पर कर लूं क्योंकि मुझे पर भी आना है। मैं आपको बताता हूं, पहली है खुदा की पाकरवा, कोई गलत शरीर देंगे भी, मतलब इस टॉपिक के बाद अगली दूसरी शुरू होगी पाकरवा की, कि उसमें फरिश्ते हैं, कामल के मुकद्दसीन है, आसमान पर कौन कौन है। पिछले दिनों खुदा ने आसमान खोला मेरे पे कि आसमान से कौन कौन सी शख्सियत नीचे आ सकती है, उनकी डीलिंग क्या है। ये फर्स्ट मंडे ऐसे आसमान खुल गया और वो एक नई स्टडी आई, बिल्कुल नहीं, और दुनिया में वो बहुत कम आपको मिली। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत रूहानी, नो, शायद खुदा ने कुछ नकम्मे बेवकूफ को चुना है कि आपकी दुआओं के जवाब में उसके फजल के सबब से लोगों की जरूरत के लिए खुदा कभी कभी कोई चीज नहीं, सॉरी नहीं मुझे थोड़ा, लेकिन जब रूल मुझे मेरे ऊपर आ जाता तो मैं खुद परेशान हो जाती, मैं क्या, मैंने तो कभी सुना ही नहीं थी, और वो होनी शुरू हो जाती, और वो कहता नजर आनी शुरू हो जाती। मेरे पास ये मेरे पे बहुत बड़ा रहम हुआ। अगर मैं फरिश्तों की बातें करूंगा तो फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे, फरिश्ते काम करते हुए नजर आते, और वो काम करना शुरू। और ये खुदा के पाक की तहरीक होती है, इसमें कोई शोर नहीं मार सकता। मैं तो आपने तो मार ली थी, मैं नहीं मार सकता। चौथे ताम मारा ने, मैं भी फरिश्ता हूँ जब मैंने कुछ किया होता। आई डोंट डू एनीथिंग। कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए अपने लिए, आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, फलाना, मैं किसी को नहीं बोलना नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा। मैं खुदा का बेटा हूं, आपकी तरह, बेटियों की तरह, बेटियों की तरह मैं भी खुदा का बेटा हूं, मैं भी खुदा का चुना हुआ, खुदा का रहम मुझ पर अप्रूव्ड है। मेरे साथ खुदा ने बहुत बातें की हुई है, लेकिन इसका यह मतलब मैं परफेक्ट, इसका यह मतलब मुझे सब नहीं आती, मैंने पढ़ी नहीं पाई की जो मुझे
मेरा कोई फील्ड ही नहीं है, मुझे कोशिश भी की है, पढ़ सकता हूँ। आजकल तो यहाँ डॉक्टर आते बैठे हैं बड़े बड़े खाते, कितों पता लग जाता सारा कुछ, लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं हुआ। 50 साल पहले बाबा फलाने बाबे ने सारियां ईमान दियां आयतां पढ़ के बड़ी सोहनी किताब बनाई, उन्होंने 3 साल लग गए, 4 साल। अब क्या है, गूगल एंड मारे सारे मानने वाले सामने खोलिया, सारी स्टडी पे स्टडी ले लो, प्यारी ले लो, इतनी प्यारी वाली स्टडी बोलेंगे, लेकिन अपना तो कोई तजर्बा ही नहीं। पुरानी आजनामे में लिशन एक दफा कहा, लकड़ी का काटने चलते सारे ही चल पड़े। पुराने में कुल्हाड़ा, इसमें कुल्हाड़ा पता ना, कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा क्या होता है, उसमें लकड़ी होती है और आगे क्या लगा होता है, काटने वाली क्या चीज होती है, लोहा। लकड़ी काहे की होती है, लेकिन उसका वेट सही करना, मारना क्यों पर इफ्तिखार साहब तुझे तो आते पढ़ के लोहे ना काट दिया, लकड़ी भी चाहिए, इंसानियत भी होती है। आप जब कुछ काम करते हैं तो आपकी इंसानियत भी साथ होती है, आमीन। और बाप की कुदरत या खुदा का मसा, खुदा की कुदरत आपके ऊपर वो लोहे के काम वो कर रहे हो। अब वो जनाब ये क्या उस माने के लिया, उसको फिर ना ले लेना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने मिसाल दी है। अब होता क्या है वहां पर, वो क्या कईयों ने लिया, एक ने मारी कुल्हाड़ी, बेचारे मेरे को मारनी मोड़ से मार देती होनी, वो अपना ढिल्ली सी, कनेक्शन सही नहीं सी, लो गिर गया, कोल दरिया तो उसमें गिर गया, क्यों जी गिर गया। आप पिटन जा पे, हाय लीशा की हो गया, मेरा तो लो आई पानी लग गया, मांगा हुआ था, और मांगे मैसेज नहीं चलते, पेश कर सकते हो खूबसूरत तरीके से, उसमें 19 नहीं हो, वो काटेगा नहीं। फिर अगर कुल्हाड़ा तेज नहीं है, आपकी रूह के साथ पार्टनर का वो नहीं है, मसला नहीं है, तो जोर ज्यादा लगता है। जब आप ममूर हो तो फिर आप आराम से दूर निकल जाते। हालेलुया, हालेलुया। असल बात तो तेज करना है, अपनी रूह पर खुदा की रूह के साथ मिला के दंदानादार बन जाना है, दाना तैयार की तरह, लोहे की तरह बन जाना। और जाने का किसी का मांगा गिर गया ना तो मुझे पूछना, लकड़ी रह गई, लोहा कितने गया, मंगिया मैसेज होगा, तब वो पता नहीं किधर नहीं जाना, तो तक कर पॉइंट निकले। जब आपके साथ उसका अटैचमेंट होगी, जो रेवलेशन होगा आपका, रेवलेशन भी करेक्ट होना चाहिए, नहीं कि गलती क्या है सारे क्या मुझे खुदा ने हमारे किसी बहुत बड़े खादम में किसी वक्त वही ने सही बसना टीचर, मुझे उन्होंने कहा जी क्या लगा जी, मेरे घर वालों शिकायत की, मेरे लैंप वालों ने क्या लगे आप जिसको मर्जी चढ़ा देते हैं टीचिंग देने के लिए, मैंने तो चढ़ाया, पुराने को चढ़ाया था, उसके मुझसे हमसे ठीक हुए, मेरे सामने ठीक हुए, निकल मुझसे करता था, नाम नहीं बताया, तो जानते हैं वो ना बात करें, किसी को ना बताया। आप कहते हैं जी उन्होंने तुझी बाइबल पी, क्या बाइबल सुना, उन्हें मंडे ने सुनाते क्या कलाम में लिखा है कि आखिरी जमाने में खुदा के कलाम का काल पड़ जाए, काल पड़ जाएगा। ये अभी मुझे साल पहले पता लगा, ये ऐप ही नहीं है, ये ऐप लिखी है तो रेफरेंस पे कॉन्टेक्स्ट कितने लिखे आखिरी जमाने में, कितने लिखा कि आखिरी जमाने में, वो किस वक्त बताऊंगा, फिर मोर पास डॉक्टर साहब निकलते वहां, पता नहीं कहता मुझे खुदा ने कहा बाद में तो त्री छाप रही है, जो नहीं पता हूं तो नेट पे आ गई, हूं तो और लगे एक और सिस्टम कोई, वो दुनिया के हर कोने चार जुबान से चलते हैं, ते वो कहता है कि मैंने खुदा ने क्या है बाइबल अपनी छप्पन ने कलाम का काल ही नहीं पैना, लिखिया ही को नहीं, किसी में फिर दसांगा जो पढ़ के वाला रेफरेंस पे कौन साडे बड़े योद्धा दे परदादे ही समझाते ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रहते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े नहीं ना रूप किसने दसे, वहां तो पढ़ लेना रेफरेंस पे, ये नहीं लिखा काल पड़ जाएगा, कहाँ लिखा आपकी माने, वहां आपकी माने को जिक्र ही नहीं, वो तो रेफरेंस पे कौन होता है और मकसद इंजी का देना बात सामने क्यों जाते रहना बात ही नहीं, कहता जी मुझे कोण वो नवा आराम हो गया मेरे मंगरू ने मैं हो जाए आराम तो जरा बात ना कभी कभी करती है, उन्हें साहब उन्हें मुझे शिकायत कहते जी खुदा ने मुझे दसिया एंड बाइबल तो बड़ी छपड़ियां ते काल पे ना पता की होना है, काले सारे गायब हो जाने, चिट्टियां रह जानियां बाइबल एक खुदा ने नहीं कहता हूं नहीं तो करे मेरी रीस करनी, वो टीचर नहीं है, मैं भी टीचर नहीं, मैं खुद करता हूँ काम का, मुझे टीचरों के सामने बैठ आई टेल यू मैं टांगे कांप रही हैं आपके लिए, चेक करके देख लो सही आता है, मुझे डर लगता है यार, ये लंडन लोग इनको इतना कलाम आता है,
इन्होंने नेट से हर चीज उन्होंने पढ़ी हुई है, मुझे अब डर लगता है इंसान। लेकिन याद रखना कि जब खुदा मेरे से बोलता है, मुझे बोलता है, तो मुझे पता होता है खुदा बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हम हर बंदे में शुरू कर दिया, बाइबल ही नहीं पढ़नी, बाइबल पढ़ के खड़े होके हुणे उसके उतरे तो सारे ही गलत उतर गए, सारे नहीं लोग खड़े बैठे तो कहते ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ गलत तालीम देते और सारा नेट बदनाम। मैंने किसी को नहीं ऐसे सिखाया, आप अपना करता, मेरा अपना किसी की रीस नहीं बननी। हार का लगता हूं मैं डॉक्टर आबू तो ना बंद करता नवे अंग्रेजी जानते मजे में सादा दिल का दादी के अंदर स्टूडेंट बन जाए। अब मेरे पता कहीं यही फर्क है, आपको मेरा बेटा पूरी स्टडी फर्क है। ये मेरा एक और बेटा अदर करके आया बाहर की थियोलॉजी में, ਉਹਦੇ को डर लगता, वो ऐसे चुप के बैठा के डरना। इसलिए कि बात सुने, हम जो है हम सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो जो उन्होंने स्टडी ली है उन्होंने बड़ी गहरी थियोलॉजिकल बेसिक्स ये वो सही ली है। ये नहीं कि इसलिए जब मैंने देना तो ऐसे नहीं दावा कर देना उनको बता देना चाहते को गलती बोली जाए। और लोग जो पढ़े लिखे तो पकड़ लेते आप टीचिंग गलत नहीं जानते। इसलिए याद रखें कि आपने स्टडी जो करनी कुल्हाड़ा नहीं लेना, मांगा हुआ अच्छा नहीं होता, उसको पहले अपना तरीका बनाओ। पढ़ो, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने इस्लाम में की पढ़ी, बंदे देख जाते मैं अखलाक सुना कि शैतान का काम। जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था पहली दफा, मैंने कहा प्यारा गाता है यार, बहुत प्यारी, मजा आ गया, मजा बड़ा अकेले बैठा लो देखने का। फिर जब मैंने उसको देखा तो उसके सामने मैंने देखा कि ये ना कलाम बड़ा अच्छा दे रहा है। कलाम देकर जब उसे छूना निर्णय हुआ, मैं कहते शैतान का काम है ऐसे ही। अब ये तो शैतान थोड़े समझे वाले हो इसका पेंटिकॉस्टल हो इसका ऐसे। मेरे को पूछो, जो तो मेरे डिग्नेचर मुझे सारे के शैतान आ गया डायरेक्ट। अब हुआ क्या, मुझे जब हुआ तो मैंने रोना शुरू किया। मैंने कहा खुदा, मुझे आवाज आई ये शैतान का काम नहीं है, ये मेरे बाबू का काम है। तो तानू पता है भी प्रोफेसर है, बहुत रोना शुरू कर देता। मैं पंजाबी च मैं खुदा भाला भी आज पता तस्वीर बड़ा अभी झूठियां का साथ देना, गोरे ने ना उन्होंने सारा कुछ देना, सादे क्यों नहीं किसी बंदे देता पाकिस्तान हमारे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बस टॉट राइट रॉन्ग। जब आपको एक लेवल तक रेवलेशन है, आप उस तरह से चलते रहे। मैं उसी तरह का, मैंने कहा कि नहीं ये तो खुदा के बाद रुकता गया, तू कहे तो देख दूंगा। आवाज आ रही है मुझे, मैं तो नहीं खुदा, मैं नहीं इस काम किसी और में देख पाकिस्तान में देखता। और मैं हो चुके 30 ईयर्स में हर दूसरे चर्च पे खुदा का मसा आ रहा है, लोग गिर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं बाइबल के उसमें आपको टीचिंग सिखाएंगे। फैमिली मसा पढ़ ले, उसमें भी कुछ आपको मिल जाएगा। किताब में सर क्या कैसे कहते आप इसकी और डिटेल में मतलब 30 साल में और बहुत कुछ समझा दी बात की कि वो नहीं मंगया ले जाना कि बैनी इंसाफ का मसा लेना नहीं होता अपना, मेरा अपना पता अपना। यू लर्न फ्रॉम द बाइबल, खुदा से और मेरे साथ बात कर। मुझे तजर्बा दे, लंबी कहानी है तो खुदा ने मुझे दिया, मैंने किताबें लिखी सारी कैसे ही सब कुछ। अब सारे मेरे खिलाफ थे, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो पता नहीं, मैं पकड़ता हूँ मैं क्या करूँगा, दूरी गिर जाती मैं क्या, मेरा कसूर तो नहीं है। इसलिए याद रखें, आप इससे कह रहे कुल्हाड़ा मांग के नहीं चलाना, कुल्हाड़ा अपना बनाना है, उसको पहले लेना, अपना जड़े बनाना और फिर आप स्ट्रांग हो गए। आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैंने उसको चेक किया हुआ है, क्रॉस चेक करते हैं, उसको सारा देते हैं। फिर बड़े लोग फिर आपको इसमें ऐसे बोलते थे, बात क्या बोलते थे, जो बोलते तो उन्हें पता होता था कि नहीं कि जज्बात पे आकर जो मर्जी कह रहे। कई बार मैंने देखे जज्बात पता नहीं की कैसे बात कर पाई की क्या कहते मुझे नहीं पता होता, उनको जज बोल गया सुन लो तो उनको दसते हैं कुछ नहीं ऐसे आगे बोली जा रहे गलत बात बोलते जाए। और जो थियोलॉजी वाले हैं जिनको पास याद इतने तजर्बे नहीं है, उनको थियोलॉजी सीखा उन्होंने पढ़ी हुई है, वो कहते हैं गलत बोलते हैं। इसलिए आपने बताते हैं आपने इल्म भी से देना है और सूर मसून सीखो। हम मैं तो सारे सामान से थोड़ी सीखे हैं, बहुत से मजमून है, ये जो चीजें रूझान बदले ये मैंने किताब से थोड़ा सा पढ़ा था जिसका था वहां सुना था, लेकिन ये दायरा ये सारा मैंने बनाया। बाकी इसको एक्सप्लेन इसमें 2-3 पॉइंट किसी के लिखे हुए, बाकी सब देवता है। मैंने उसका मुकाशफा लेके तो खुद बने, आपने भी इसको समझा, आपको बड़े बड़े मजमून खुल जाएंगे। आप मुझसे ज्यादा बेहतर रेवलेशन ले सकते हो अगर आप खुदा के साथ चलते हो, कनेक्ट हो जाते हो और खुदा को समझा, तो ये आप इससे भी शायद को बेहतर बनाओ।
तुसी और ज्यादा समझा आज, लेकिन आपने टीचर नहीं बनना अपने आप जब तक दूसरों के साथ टैली ना। इसमें से एक बात भी है, दुनिया में चैलेंज कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, कर रहे वर्ल्ड में मेरे साथ चैलेंज करने में सिर्फ एक चीज कंप्लीट बताऊंगा, बाइबल से बात आयतों पे यहाँ बात नहीं सारे आयतों के साथ बताऊँ, क्योंकि खुदा ने आयते मुझे बाद में दी, मुझे रेवलेशन होगा बाद में मुझे आते हैं, इसलिए याद है मेरी रीस नहीं करनी। कई लोगों को आयतें पहले रूहानी बनने के लिए बता रहा कि आपको पहले बाइबल आनी चाहिए, बाइबल इतनी पढ़ो बेशक सा पता लगे सारा आपको पता, उसके बाद रूल को दस्ते कि रूल को उसको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद आप मजबूत हो जाओ। आप जब हो जाओगे पहले बाइबल पढ़ोगे, फिर दुआ वो बनोगे, फिर आपको मसा मिल जाएगा, फिर ये तीनों चीजें काम करेंगी तो आप आगे, फिर आप देखोगे आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि बुनियाद थी। इसलिए रीस नहीं कर लेनी, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने 2 बंदे डेट पे ने तो मैं अस्पानी बन गई, मैं मास्टर बन गई, और वो गलत तरीके से किसी नहीं है पढ़ा नहीं। वो एक बदरू करके कहती बदरू जो कटी है ना तो मुंह से थुकना चाहिए, भावे बदरू ही कहती है थुक, मेरे ने मैं थुकने की बात नहीं कर रहा, मेरे एक बदरू नहीं कट रहा, सारे हार के मैं गया तो उन्हें देखा कि हम पासपोर्ट आ गए, तो मैंने पता की आती कहती हुणे चली जानी है, बस एक थप्पड़ मार दे, भला पा दे रही प्रोफेसर थप्पड़ मारेगा तो पूरी लैंड थप्पड़ा भी लग जाएगी पीछे, वो क्या फादर थप्पड़ मारता तो मैं क्यों ना मारा, फादर तो बड़ा भावे हो छोटा ही हो बड़ा बना दे। मैंने बड़े बड़े खातमों को नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनके साथ था, मैं बच्चा था, न्याय ने मुझे कुव्वत मिली, हो गया, मैंने भी दुआ की, वो पत्थर बन गया, ऐसे बन गई फाइनेंशियल होती, तो अंदर लेके चर्च में, तो मैं अंदर मैं भी चला सीखने बड़ा बुजुर्ग 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 पड़ता उन्हें मेरे सामने जो बुजुर्ग अकड़ गया, फिर मुझे पत्थर नहीं बन जाता, बहुत मेरा ख्याल तुम्हें बुद्धा जी अपने हाथ में होता, फिर तो जैसे उसका पत्थर नहीं होता वैसे वैसे चौकड़ी मार के अकड़ गई। अब उसको क्या है, मैंने उसको कर दिया, ये सितना में वो भी लिखी नहीं, मैं आज अपना पीछे मुझे देता नहीं, मैं नहीं निकली और मैं आगे बाबा पढ़ेगा, बाबा भी आया मेरे कोल बाबे की बारी, बाबे ने आगे गया यीशु के नाम निकल नहीं निकली बड़ी ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ मैं कि ਮੈਨੂੰ नहीं आਉਂਦਾ, देखो सीखना पड़ता। मेरिया आंखों के सामने वो बाबा करता सी, उन्हें इथों है जड़ा सी देसी आदमी सी, आदमी पिंडी दा सी, ते याद पिंडी वाले हो बच करे हो, पता क्या हुआ पुराने बाबे चले गए नचमान मेरे सामने उन्हें पड़ा अंगूठा 21 जोर दी दबाया, उन्हें जाए जाने रखा बड़ा सा तरीका, मैंने नहीं सीखा, मैंने आज तक किसी का मुठा नहीं दबाया। एक और बाबा सी और मैं ना जाके जब भी मुकाबले में गया मैं ना लाके कि तू अच्छी मत कर, दुआ करने दे, उन्हें क्या कि उन्हें जाके तो मेरी वापस मेरी अपनी भाभी का उन्होंने घर मैंने ले गए, उन्हें जाके बाबा बदूआ हुई करता सही तरीके नाल बंदा खुदा दा मुझे वो पता मेरे नाल सारियां हुईयां जी, जेड़ा गलत करे डॉक्टर साहब ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਧ ਵਾਲਾ, मैं काले पीते हैं मुझे ने मेरे याद रखना, समझ आई बात थी, तो आपने नहीं माननी, जो कलाम से बात है वो नहीं माननी। मैंने कहा अच्छा, वो कहता अच्छा वो तो जादू करे मैं नहीं जा, अद्धा घंटा तो आपने नहीं गया, बाबा कहता कोल चला गया, भाभी थले जमीन पे बैठी जाके कहता कि जाना कि नहीं जाना, कहता मैं मुकाबला करांगा जादू, मैं कोल बैठा, मैं पीछे बैठा दवा कहता अच्छा, कहता मुंह खोल, ये कीड़ा वाला फार्मूला लगने लगा, मुंह खोल, मेरे कोल बैठा है, वो बड़ा मशहूर सी बदनाम कर रहे थे, खुदा खादम, मेरी आंखों के सामने उन्हें मुंह चोदी दार नपी है, काटी आ और तोड़ा पला ये भाभी जी तो बात इतना हाल नहीं ठीक हुई, ठीक बात हुई दस आओ क्या है कि भाभी बात में कहती है किन्ने दिन की मेरी दाढ़ ही दर्द होती है, बदरूद की दाढ़ से क्या बदले बदरूद इसी का पहले भाभी जी दसो मनो है सिखने जे हो फार्मूले कोई पुराना बाबा लगा मनु को नहीं चलते आगे मुझे पता मुझे है, लेकिन मैं वो जो फार्मूले पढ़े बच्चे नहीं मिलता राजू किसी याद रखना है, बाबे बड़ा बड़ा कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पर अमल करो, बाइबल बताओ, जितने बड़े गलती करते हैं फिर उनको देख के छोटे नहीं करते, उसके बाद पीछे बैठ गया आके बैठ के नहीं किया,
मैं क्या चुप हो गया, मैं बड़ा शर्मिंदा मैं क्योंकि तुम्हें मेरा भी ना थोड़ा जहा मुश्किल से, तो मैं थोड़ा जहा बड़ा हो गया, तो मोहब्बत के साथ हो गया, मैंने के साथ मैं उनको कुछ उठाई नहीं दा हो गया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਦਰੂ ਬੋਲਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਫੋਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ पढ़ना तो तू है, दिल में कह रहा हूँ, मैं क्या खुदा आज तक मुझे फिक्र याद है, मैंने अंदर ही दुआ भी कहा दिल में, मैंने कहा खुदा एक ही खतरा खून का इस पे पार डाल देना, ये जादूगर नारी चीखा मार दिया, माफ कर दो, मैं जा रहे हैं, चला जाना है। मैं तो ठहर जाता तेन हलवा खवा के कर कहता सी खाए पे नहीं फलाना नहीं करना है, कौन ये गल्ला सुनते। यू शुड नो अगर आप में वीकनेस है तो इसका मतलब आप शहीदों के पीछे हट जाओ, नाम कर लो, मुझे नहीं पता किसी की जरूरत हो, लेकिन मैं तो पहला क्या थी टॉपर तो बात करोगे तो सुधारो, कितने की जरूरत हो, ये नहीं करना, निकलती है नहीं निकलती आपका काम है हुक्म दे देना, चुप हो जाना, खड़े हो जाना, निकल जाएगी। एक दफा फर्स्ट मंडे को काफी देर की बात है, किसी खुदा ने का सारे जादू बुधवा वर्ष निकला, वो कोई 20-25-30 बंदे आ गए, मैंने ऊपर से दुआ शुरू की, कोई उधर ने जो टंडे है, उधर उल्टियां करने है, उधर ने चीखा मार लिया, कभी चौकड़े कभी है, मैं अपना मीटिंग खत्म की, मैं जान लगी रही उन्होंने कर दो, तो मैं तो हुक्म देता भरते लेटे रहना, मैं हुक्म देता चले जाएंगे, एक उठा दूजा उठा, सारे ठीक ठाक होकर चले गए। बुजुर्गों की बातों में नहीं आना, जितनी बहस करोगे जितना जोर लगाओगे उन्होंने पता है खादम की गल, ऐसा मैं शेर लवाऊंगा 2 दिन सोता रहेगा, थक जाएगा। Don't use your force, don't use your own power, use the name of the God. नाम से मैंने हुक्म दे दिया है, कई दफा इसी निजाती का जादू करना रखेंगे, मेरे पास केसेस हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसको, जब बच्चों को निकालने को सिखाऊंगा। आगे चलते हैं, रूहानी इम्तियाज के तरीके क्या है। पहला बात है आप हैरान हो जाओगे, बाय जनरल नॉलेज हासिल करदा इल्म के जरिए, ये मैं थोड़ा पहले बयान कर चुका, इल्म के हासिल करदा इल्म आपका एक इल्म होता है, रूहानी तौर पर आपने सीखा होता है, जैसे आप मुझसे बातें सीखे, अब आपका एक इल्म मिल गया, मैंने कहा कुछ पॉइंट्स मिल गए, उसको ज़हन में रखो, और जो आपने किसी से हासिल किया है इल्म, और वो आम इल्म भी हो सकता है, आम इल्म में भी बंदे को देखना चेक करना रूहों को, लेकिन उसका पता लग जाए उसकी बैकग्राउंड क्या है। कई दफा बंदे के अंदर रूह नहीं काम कर रही, पर्सनैलिटी काम कर, पर्सनैलिटी को चेक आम बंदा भी करता है, साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट भी कर सकता है, अपने तजर्बे की बेस पे और नॉलेज के बेस पे, और आप भी कर सकते हो अपने तजर्बे के बेस पे, जैसे मैंने पहले बताया, इसको मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा। हासिल करता इल्म, मैंने क्या बताया था, जो इल्म हासिल किया है ध्यान रखना, इल्म के हो जाए ट्रू मिले है, सच्चा वाला इल्म मिला है, या क्या मिला है मिक्स्ड है, झूठ सच मिला हो, या आपके पास फॉल्स नॉलेज, अगर फॉल्स नॉलेज का फॉल्स नॉलेज से गलत कर दो, क्योंकि आपके पास जो झूठा इल्म है ना, आप उससे ही हर एक को जज करो और आप गलत कर रहे हो। इसलिए जो नॉलेज है, जो लेना है, उसको भी केयरफुली, उसकी स्क्रूटनाइज जिसको कहते हैं, अच्छी तरह परख लेना है, क्या खुदा का भाई बंदा तो भाई आम बंदा तो भाई कोई है, अकल की गल करेंगे सही कर लेके गल। इसलिए याद रखें कि आप जब खुदा के कलाम जब करेंगे तो इसलिए आप अपने जनरल नॉलेज से भी इम्तियाज कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदे की हरकतें आपको बता दे कि बंदा ठीक नहीं है, बंदा बता दे लेकिन मेरी है कि नेचर थे, या पहला भी छोड़ सकती आदत चुप या लड़ाकू है। पिछले दिन मुझे किसी ने बताया जी, कहने लगे कि वो जरा बंदा है ना, उन्होंने जरा में आया हो, वो बहुत लड़ता अपनी बीवी ना, तो चर्च के लीडर बने साल को चर्च की लड़ाई पाउंड, मां प्यो ने शिकायत की, घरदियां ने भैन भरा ने कहते जी घंटा लीडर तेन समझा तो लड़ लड़ के बुढ़ी ना सारे ताया चाचा ना भरा चिकरालू बाई नेचर, वो उसकी नेचर है, तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया होगा, खुदा के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा है, लीडर भी बना हो, जज्बे भी है, लेकिन वो उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी देखना, ये होता है इल्म से भी पता। ये नहीं जरूरी कि आप रोते में बैठ जाओ, पर खुदा इस बंदे से गुस्सा जड़ा बदलू होती है कि दूजा होता है, और नहीं पता गुस्सा होने ले, अब फिर मुझे बताना ही पड़ेगा मेरा साहब। एक आज मेरे पास लड़ाई हो, वो आया रोए, साहब बीवी उसके चली गई, तुसी मेरी सुलह करा दो, 20-25 साल बन गया,
सारे चर्च वाले के बड़े बड़े खातून के वो लड़की ले गए थे, तो वो दरवाजा बंद कर दिया। वो गाली गली के बैठ के दुआ करे, बड़ी दुआ हो देगी थी। वो कितने जाना लड़का मेरे को किसी दसिया तो मारता बड़ा। ये तो उसको डॉक्टर ने कहा चली जा, इन्हें तो नहीं आता, नहीं यहाँ इन्हें मार मार के नहीं आता। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी ताड़ी मां तुम चलो। मैं कहा मैं तो ना जानता है काम तू खाए। वो फिर कोट कोट कहता मेरे गले पै जाओगे कि फटकड़ी करवा। मैंने मैं नहीं जाता, तोबा कर त्योहार, तोबा कर सही हो। लोग का महीना रो दुआ, मैं कहा सीधा हो जा, फिर तेरा काम सीधा हो गया। ठीक हो गया। मैं गया जाके सुलह करी, उधर जाके पता लगा जी कुड़ी मारने लगा सी, असि नहीं करनी खुशी से मार लेंगे। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਿਸਤਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਰਾ ਰਵਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦਾ। जब मानते कायनात में तो एक बिल्कुल खुश बाशने जिंदा ने और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। देखो पीढ़ी का त्याग रखिया करो। ये बहुत बातें हालेलुया कर दे रहे। मैं तो भला जोश आया था मैं कहने दे भाई मैं जो मर्जी हालेलुया बोल रहा। इससे कर देना ना क्या डॉक्टर था मैंने से आम कर देना। हाँ दाने आज काटता और फिर यसुसी नो ना मार मार के लमा पै के कहते हैं चंगा मार मार के लमा मार। अरे भाई जब जिंदा हुआ उस वक्त कहना हालेलुया। हालेलुया वो मुर्दों में से क्यों ना हालेलुया भी सही कर लो। वो जोश ना कह दे पावे गलती गाल कह दे स्तान दी गाल कह दे हालेलुया क्योंकि जोश बोले समझ नहीं रू नहीं हुंदा वो जोश होता है। मौत में वैसे यूज करने चले जाए देख के तेरे का अपनी नारे लाएंगे वो साइकोलॉजिकल है। वो हम मॉब में जाओगे आपको जोश आ जाएगा। हमने सियासी चलते भाई भाई डेविड हमारे क्लास में मुझे पुटो के लिए हम मैं तो भी जा रही एक दिन मुझे भी लेके मैं क्या साथ दिल करता नारे मारने। वो एक फिजा होती है साइकोलॉजिकल। और गैदरिंग में हर एक स्ट्रक्चर में कहीं हम कुछ में हिंदी नारे मारते कि नारे ने वाले चर्च नहीं मिली के नारे लगे। आप वो क्रूसड़ी बनाया होता चर्च में कई साढ़े फादी से बाहर में अद्धे घंटे तक लाल देना अद्धे घंटे के नारे लगा उस्तादो दसो जे मैं गलत हां ते मैं तुहानू इस करके बताया आ जाने जनाब। इसे याद रखें आगे चलते हैं माजी के शख्सी तजर्बा के जरिए से जब आपका तजर्बा हो जाता है बेशक आप रूहानी है या नहीं आप कितने खुदा में कह रहे हैं लेकिन आपका तजर्बा तो दूसरी बात। तीसरी बात शख्सी रूहानी इल्म और रूहानी तजर्बा के ये रूहानी इल्म की बात। एक इल्म होता है जो आम इल्म है उससे भी जजमेंट हो जाती है। दुनिया के लोग बड़ी बड़ी किताबें लिखी जज करते हैं वो खुदा के नहीं है। वो आपको बंदे बता देंगे यार बंदा जब ठीक नहीं है एक कोई मिनट के दादन के बिजनेस सही है ऐसे ऐसे तजर्बा का वो उनका आम इल्म है। ये जो मैं तीसरा नहीं ये रूहानी इल्म है बाइबल का इल्म है। जैसे आपको अब थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है तब आप क्या करेंगे हर बदलू अगर औरत या मर्द एकदम करंट है तो 6 दिन नहीं जोश आ जाना तो बदलू आ करो बैठ के पास दुआ करनी खुदा ग्रहण में कर बदलू है भी है कि नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपको रूहों के आलम में ऐसा रूहानी इल्म हो जाएगा आपको मिल जाएगा। और फिर शख्सी याद रखे तजर्बा जो है रूहानी मैं आपको क्या भी बता रहा हूँ इससे तो बता रहा हूँ इससे भी मुझे पता लगता है क्योंकि मैं कोई मुझे एकदम ही खुद आ चीज बता ये नहीं समझा कि को बटन नहीं रखे कि जो तो दिल करता आने के कहते नबूवत शुरू कर देती जो तो दिल करते हैं आपको कुछ नहीं बात ये सब गलत है। आप भी आपसे बात कर देते हैं और क्या देती है नबूवत होगी साढ़े को तो बटन लगा जो दिल करके नबूवत कर दी साढ़े को बटन लगा जो टीचिंग आप दे सकते हैं वो आप सीखेंगे क्योंकि वो आप दे सकते वो आपका इल्म आप प्रीचिंग कर सकते हैं कोई टॉपिक लेके लेकिन आप नबूवत या खुदा की रहनुमाई एकदम ही तड़ा भटका होंगे या आप इतने ज्यादा ममूर हैं हर वक्त 24 घंटे तो आपको लोग मानेंगे कि वाकई ये एक लफ्ज बोलता तो काम होता पता लगता है आप मुझे बोलेंगे याद रखें अभी तक बताऊंगा कि किस किस तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। आगे लिखा अपनी रूह के जरिए से आप ध्यान देंगे समझो क्या बात। अगर आप अपनी रूह को जैसे पहले हमने बाइबल से देखा मैं ठीक रूह में आज मैं बिल्कुल रूह में ममूर हूँ मेरी अपनी रूह ठीक है मैं कलाम के साथ चल रहा हूँ आपकी रूह के आपके साथ खुदा की रूह जब मैंने बताया ना मेरे एक दोस्त था तो उसकी मेरी रूह बड़ी होती थी
कई लोग होते हैं उनके साथ हम इंग्लिश में कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझाने के लिए। मैं भाई ये क्या करते हैं, मैं इनको नहीं इतना दिन की रिफाकत में थोड़ा जानता हूँ, ये नहीं जानते, मैं थोड़ा उनके घर गया हूँ, उनके साथ बात की शुरू हुई है, ऐसे टैली हो जाती है। कईयों के ऐसे होता ना आप भाई, कईयों के साथ नहीं होता, या ऐसे दिल मिल जाता है, ऐसे होता है जैसे कोई हमने कुछ नहीं किया, ऐसे बस मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करती फ्रीक्वेंसी होती। इसको कहते हैं आप। अगर आपकी रूट सही है, दूसरे के साथ बातें कर। मैं एक जगह गया, वो जनाब कहना जी बड़ा कौन सा है, गंदा है, सारे जन क्या कह रहा, कहता नाम ले लेके बड़े बड़े। मैं जरवानी बड़ा ठीक ही कहने है, कहता जेड़ा जेड़ा बीमार है बाइबल च लिखा ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਉਹ ਨਾ ਜਨਮ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜन्नत ਚ ਜਾਗਾ। ਪਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜन्नत ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਬਸ ਮੁਕਾਸ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ सिखा उन्हें समझा रहे, बड़ा की समझा रहे, खुदा ने उन्हें मुकाशफा दिता है। खुदा ने क्या है, जिस तरह से एक अमीर आदमी का दौलतमंद का आसमान की बारिश में दाखिल होना मुश्किल है, ऊंट का सुई के दाखिले में से गुजर जाना। और बयान सुनो ध्यान ना जरा, कहने में दुआ करा खुदा ने क्या सुई का नाका से छोटा जो जहां तक नाके की गाली नहीं है, वो किसी खिड़की की गाली, उसका नाम है सुई का नाका, ये भी पढ़ लेना। ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥ में सुविधा नाका कहते रहे, नाका नहीं है ऐसी की बात नहीं होगी। वो कहता है कानून दसिया जो पहला तो आती थी मुंह पर ढकना था छोटा हो जाता, फिर और तो आती फिर वो छोटा, फिर और तो आती फिर छोटा, फिर वो छोटा जा हो जाता है, फिर वो दिन पीछे से निकल जाता है। हम खुदा ने मुकाशफा और डॉक्टर तो सब मिलकर नवे नवे बड़े बड़े डॉक्टर बने होता सब इनकी मुकाशफा ठीक है, ऐसे ऐसे मुकाशफे पेश करते हैं। और वो कल एक बात पता किला किताब ते आपकी एडा भी मारे मैं हूं तू भी नहीं जाएगा, मैं नहीं क्या हूं, मैं हूं विचों सिर्फ मीडिया पे दसन दिया और घर के दिन देखना याद रखना। ऐसे ऐसे मैंने एक मुकाशफे देख रहा हूं, मैंने कहा उन्होंने नहीं बोलना देता हूं तू की नथिंग आई मुझे मुकाशफा सारे पूरे एफडीए पीजीए सब के बिना सब बड़े बड़े खात्मे जनाब शुक्र कर ताड़ा ना नहीं पता ताड़ा भी आते सारे बीमारी ने क्या को गंजा है कोई तुरता है इतना सब सीधा पता नहीं है, इतना तो जन्नत का सीधा पता नहीं बीमारी नहीं सी उसको सेंस ही नहीं पता कि सीधा बदल होने टाइप सब के बदल गया। समझ आ गई बात, इसकी अपनी रूह के वसीला से पहले नहीं होती। मैं जैसे जाके बैठा था कि मेरे कोई भी बात भी नहीं, मेरी उसके साथ स्पिरिट नहीं मिली शुरू में, बातें तो बाद में हुई ना। मैं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बड़ा हम्बल हूँ, मैं किसी ने कहा था जी बड़ा दुआ करदा खुदा बंदा है फलाना है, मैं चला लेकिन उसकी स्पिरिट में मैनी टाइम्स इट हैपेंड टू मी। अपनी रूह ठीक हो तो दूसरे की रूह को इस तरह भी परखा, क्योंकि आप ठीक है ना, आपको तो पता है ठीक हूँ। इसलिए याद रखें कि खुदा की रूह में ठीक हो चलना। इन्होंने शौक बड़ा एडा सोना कलर लाया, उन्हें चारों कहने छेती करो उन्हें चलिए खुद अपनी रूह के आप खुदा के तहरीर शुदा कलाम के जरिए बाइबल मुकद्दस का गहरा फहम समझ होनी चाहिए और बाइबल आनी चाहिए और उसके बेस पे रूहानी तौर पर देखना। अगर नहीं भी पाक बता रहा स्पेशल हाँ हो रहा प्रॉक्सीज हो रही है हो रहा, आपको बाइबल मुकद्दस के इल्म है, आप एक मिनट में चेक कर लेंगे बंदा ठीक नहीं है, बंदी ठीक है, तालीम ठीक नहीं ऐसी डाल कर 4-5 चीजें चेक करनी होगी और ये आप चेक कर लेंगे। आमीन। मेरी बेटियां सीख रही है, कुछ मेरी बहनें भी सीख रही हैं। इसलिए आपने जब चेक करना है तो क्या करना है, खुदा का कलाम ज्यादा पढ़ना है, ये सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप बहुत रूह में चलते हो, खुदा की बड़ी गहराई में हो, खुदा आपको रहनुमाई देता है, रूल कुछ की कुव्वत और रहनुमाई के जरिए से चेक हो जाता है। वो कैसे, आगे मैं आपको बता रहा था कि जब मैं बदुआ में दुआ करता, जब मैं बहुत दुआ में रहता हूँ, तो जब मैं बदुआ में जैसे को बदू आए तो जितने लेवल की उसकी पावर हो, तो जितना मैं रूह से मामूर होता हूँ तो मेरी उसी लेवल मेरे अंदर पावर आ जाती। मैं अब वक्त नहीं है, जाना चाहता हूँ, मैं गाँव गया, उसमें 5 लश्कर सारे लोगों से निकल, ये बात है जब मैं बहुत अमीर स्टेज
تو مجھے گاؤں کا تو میں ڈر گیا, میں روم پر بیٹھ کے میں خدا سارے بھائی 10 سال ہو گئے جو لوگ جادوگر اس میں کوئی لشکر نہیں جاتا, تو میں چھوٹا جا نواں میں رو رہا تھا لاہور بیٹھا سے جانے کا گاؤں کس میں آتے تھے وہاں جا کے میرے گاؤں میں. تو وہاں پر میرے ایسے سمیل آتا ہے, میں بہت تو آ جاؤں میرے کو خدایا وہ ملا انتظار کرنے لے کہ وہ میں پروفیسر نہیں سکتا کہنے لگے وہ آ رہے تھے میں کرنا بہت چاہیے فیل ہوئے سنہرا آتا ہے میں تیرے ساتھ خوف نہ. جب میں وہاں پر گیا بھائی جب پہلا وہ آیا گردن کی لمبی ہو جاتی سارے لوگ ڈرتے تھے بھاگتا تھے جوان لڑکا ایک جگہ کو باہر میں مجھے رستے میں اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا رستے میں گیا میرے اندر کو پاور آ گئی میں سکھ کہاں جاؤں گا سکھا ہے میرے اندر کھڑا تھوڑا تھینک یو being smart. آپ بول میں وہ موٹا ٹمبا تگڑا پنڈ تھا وہ جان لیا وہ اندر لشکر سے مجھے کیا پتا یہ وہی مجھے یہ پتا تھا اس کو ایسے اس کو کہنا اسلام جی میں کیا تو میرے اندر کو پاور آ گئی میرا لگا بندے نے چوکے ناڑی چھپڑ سے چھپڑا تھا بندے تو لاس کے ہوتے سوٹتا ہوں میرے اندر اتنی روحانی قدرت آ گئی میں مجھے کیا ہو رہا ہے میرا تو کچا کھا مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے میرے وہ جسمانی جوش نہیں آنا وہ کیا آتا ہے روحانی جوش اور روح قدس کا جوش رہنا جس میں نہیں آنا کتنے لوگوں کی پاور آ گئی میں بتا رہا ہوں قوت کے آنے سے بھی سامنے جب مقابلے ہوتے ہیں پتا لگتا ہے آپ کے اوپر جیسے تیرے دن ویسی تیری قوت جائے جیسے تیرے دن ویسے تیری ادھر کا لیول بڑھتا ہے تو اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ کا بھی لیول بڑھتا ہے اتنی زیادہ قدرت آپ کے ساتھ آتے ہیں ہاللیلویا آپ کو اس سے بھی پتا اسی میں یہ خدا نے مجھے لپایا روح کو اس کی قوت کے ذریعے سے بھی اور پھر رہنمائی کبھی کبھی مل جاتی ہے شاید قوت سے پتا لگے لیکن خدا آپ کو بھی ہمیں دکھا دے گا میں نظرات سے یہ رواں کا امتیاز ہے یہ ٹاپک آپ کو بتائیں گے پھر اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے پھر بی میں آ جاتی ہے سامنے جادوگر نظر یہ سارے بہت دیر میں تو میں 18-10 گھنٹے تو پھر مجھے وہ پتا لگ جاتا پھر میں گھٹنے ابھی میں سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگتا تو وہ سارا پھر میرے سامنے آج بھی بہت لوگ ہیں جن کے سامنے میں خدا کا شکر کرتا ہوں مبارک لوگوں جن کی نہ صرف روحانیاں کے بنیا بلکہ خدا نے کوئی امتیاز دیا کبھی کبھی دھوکہ بھی کھا جاتا ایک اور گروپ آیا تھا ہمارے درمیان وہ آئے کہیں سے آ بندے خدا کے تعلیم ہو رہے مطلب انہوں نے بنائی ہوئی اپنی وہ گروپ بیٹھ جاتا تھا چلو جی دعا کرو ہے بھی ذرا فاطمی کا بچے فارمولہ بائبل کا نہیں کہیں آپ کی وہ ڈکے سے اب بتا تسی بھی آنا تسی بھی پاس جانا آ جانا تسی بھی آ جانا تسی بھی تو آنا وہ بھی آ جانا پاس بھی آ اسی بہوں گے دعا کریں میں مثال دے رہا ہم نہیں ایسے کریں مثال دے رہا وہ بہ جا دیتا اچھا جی دعا کرو اچھا جی منڈا جڑا ہے تینوں کچھ نظر آیا نہ آیا میں جب بندہ ہو جا پڑھا رہے تو بھی آہو نظر آن دیا ہے کی نظر آن دیا ہے ادھر جن تو آن دیا ہے چل جن نظر آ رہا نا حملہ میں کرنا مجھے دسو نظر کسی نے آئے تھے حملہ کوئی کرتا کدھر کرے گا فرق کرو جن ادھر نظر آ رہا تو ٹھیک ہے ڈنڈا مارو جن ایسی ایسی تعلیمیں اچھی اچھی تعلیمیں نظر کسی نے منڈیا حملہ کوئی کرن دیا یہ کیا ٹیچنگ ہے اس ناٹ ببلیکل ٹیچنگ جس نے اٹیک کرنا اس کو کوئی ہوتا تھا تسی وہ کو پتا کرنا کوئی نہیں کہ اپنا گروپ گروپ کے کنے کدھر نظر آنے تو ہم نے غلطی نظر آنے یہ وہ اپنے کیوں ہوتے پھر اس لیے بے شمار کو پیسے کر اور میرے گھر میں کسی نے چھپا میں نے پھر میں پیار نہ مطلب جانا چپ کر کے میں وہ دعا گروپ نہیں مانتے اس لیمپ کرنا لیمپ پہن کے کرتے نہیں بھائی خدا کے کلام پہ چلو ٹھیک چلو نکلے نہ نکلے وہ جانے کئی دفعہ فلموں والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں لوگ آپ کو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی چھوڑنا نہیں چاہتے کئی گناہوں کے یار ہوتے ہیں کئی انہیں جادو بھی کئی کو گناہ بڑے ہوتے ہیں زندگی میں خدا نہیں دینا کئی چور ہوتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میں بدو نکالنا خدا نے کہا جی نہیں نکلنی میں کہوں گا میں نہیں میں دوڑنا باقی کیوں بندہ ہے کہ کو جائے کرتا ہے یہ تو اس گناہ میں نے کہا خدا میں کر کے آپ کس کو لڑ پڑے گا تو جو ہے بیچ میں میرے گلے پہ بہت حکمت سے بھی چلنا دیکھنا پڑتا ہے جب اس نے گناہ سے توبہ کی منٹ بھی لگا چلی شفا آ گئی اسی میں تو اللہ کا روزے رکھے
کئی کہتے ہیں کہ تسی ساڈے روزے رکھے تے اسی اپنا پی وی جاواں تے کوٹھے تو ساڈے روزے رکھو میں کہا تے کسی ہور لبو روزے میں رکھدا رہاں میں تھک جاواں تے تسی اپنا آرام نال موٹے ہو کر تے کوٹھ پی وی جاؤ میرے بعد اس طرح کے بات نہیں سیدھے تم نے ہونا پہلے توبہ کرو اپنی غلط باتوں کو چھوڑو اپنے آپ کی خدا بدل کرتے ہیں ہاللیلویا اس لیے یہ ٹھیکہ نہیں لینا کہ ساری ایسی کرنی ہے عزت کا معاملہ بھی بنانا نہیں نکلتے نہ نکلے نکلے گی کس کو جلال ملے گا نہیں نکلے گی کیا ہوگا کوئی بےزتی نہیں ہوگی خدا کو تو پتا کہ کیوں نہیں نکل رہی آپ کو نہیں پتا اور کبھی کبھی خدا بتا دے گا یہ اگر وہ توبہ کر دے صحیح ہو جائے ٹھیک ہو جائے یہ نہیں کرے گا توبہ مار ہر ایک پہ زور نہیں لگانا کسانوں کو ٹھیکہ نہیں بتا دیتا کہ سارے جس نے سارے یروشلم کی بدرواں کر دیتے ہیں دسو مجھے کیا یسوع کے بعد کو بدرواں نکالنے والی رہ گئی تھی کہ نہیں وہ دسو بڑے بڑے خاتمے رہ گئی تھی کہ نہیں کون کرتا سی ایمان لانے والوں کے درمیان بول دیا کہ وہ میرے نام سے نکالی پترس سے ساروں نے کیا ساری دنیا کی نکال دی ساری پترس نے نکال لی کوئی پولیس نے بھی نکال لی میں ایویں ٹھیکیدار بنا رہا ساریاں میں کر دی Yes, I will do my duty. I will do my ministry. What God has given me. جتنے میں خدا کہتے کہتے کرو تو میں کرا ہو سکتا مجھے خدا نے وہی طاقت میری کسی اور جگہ استعمال کرنے کے منہ بجانے ٹیچنگ دینے کے لیے برکت لانے میں صرف بدھواں کٹا نہیں چلے رہا گا بڑیاں کٹیاں نے عہدے بدل یسوع کے نام میں اپنی طاقت سے اس کے نام میں یسوع کے نام میں بدلوا ہمارے طاقت خدا ابھی بھی گرتا ہے بڑے بڑے جادو نہیں گراؤں میں آن لائن وہیں آ جانے نام کے نام کو چلا انہوں کو جلاؤ نہیں چلاتا میں نے نکالی نکالی کس نے ہے یسوع کے نام کی وجہ سے بتاتے ہم نے صرف خدا کے کلام پر عمل کیا ایمان لایا اختیار استعمال آمین نکالنے والا کون تھا یسوع سے اس کا پاک روح جب تک شیطان نکل جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے کبھی جلال نہیں لینا اپنی جلال کو نہ چھونا آخری بات جو آپ کو سب کو پتا ہے روح قدس کی قوت رہنے آخری بات پاک روح کی نعمت اور روحانی لفظ بھی لگتی ہے آپ کو پتا ہے انگلش میں ہولی اسپرٹ کو بھی گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ کہتے ہیں آیت آپ کو سب کو مشہور ہے پائیان بہت ہوتی ہے سننے کے بعد اس کا دو بار اس کی ادھر لکھا ہے کہ 37 نمبر میں بھول گیا ہوں 38 وہاں لکھا ہے کہ توبہ کرو نمبر 1 اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے repent and each one of you be baptized in the name of Jesus. Amen. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Holy Spirit بھی نعمت ہے gift ہے free gift. آمین. Holy Spirit ذات خود gift ہے تو یہ وہ نہیں میں لکھا کہ روح قدس کی gift ہے یہ لکھا ہے روح قدس کی نعمتوں کا چیز 9 نعمتوں میں سے ایک روح قدس کی نعمتوں میں ایک نعمت کا نام ہے جو ہمارا ٹاپک بولو کیا ہے روحان کا امتیاز وہ ایک اسپیشل گفٹ ہے ہر کے پاس نہیں ہوتا ہر کئی طریقوں سے میرے پاس اگر نہیں ہے تو میں کئی طریقوں سے جج کر سکتا ہوں لیکن جس کے پاس گفٹ ہے وہ پاک آئے گا اور اس کے ورڈ آف نالج تو بیٹے جی بڑے کوئی یاد ہے ورڈ آف نالج کرتے اور بھی دنیا میں پاکستان میں لنچ کے اسٹیج سے شروع ہوا تھا ہوا تھا نام لے کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن گفٹ آف نالج کیا ہے کیا مجھے سارا نہیں آتا ہے نو علمیت کے کلام یہ نہیں ہے the word of gift of knowledge یعنی آپ کو علم دیا جائے گا اتنا کہ جتنا ورڈ دیا ہے وہی دے سکتے اگر مجھے خدا بتا رہا ہے کہ دائیں طرف فلاں پتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کی 5 بیٹیاں ہیں تو آپ کو اتنا ہی پتا ہے وہ بات نہیں تھا تو 5 بیٹیاں بولیے 2 بیٹے کا نہیں بولے تو میں کہا مجھے دسیا یہ نہ گل تو بیٹیاں واسطے ہوئی بیٹیاں کا ذکر ہی نہیں ہوا یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے کتنا کبھی کبھی مجھے پوری ڈیٹیل دیتا تھا وہ دیتا اب بھی دے دیتا ہے کبھی کبھی صرف ایک فکر دیتا سمجھا کہ گفٹ آف ورڈ آف نالج کیا آتا ہے یہ گفٹ ہے یہ اس وقت آئے گا بات آپ اس میں ایزی پریڈ کرتے ہو آپ کو خدا اس گفٹ کس کا ہے باخرو کا جب آپ اس کا دعوے ہیں آپ کو خدا ایزی اس گفٹ میں استعمال اور آپ اس کے لیے زیادہ استعمال تو کبھی دعویٰ نہیں کرنا اگر میں کئی بار یہ دعوے کرتا ہوں اگر میرے پاس شفا کی نعمت ہو جبکہ خدا کے فضل سے لاکھوں کے حساب سے لوگ 50 سالوں میں شفا پا چکے ہیں لیکن میرے پاس شفا کا میرا گفٹ نہیں ہے شفا
اگر میرا ہوتا تو میں سب نہ پتا تھے کہیں بیمار بیٹھے پہلے تو دھیان کر کے جانا صحیح ہے نہیں برا بنا دینا پنجابی ٹھیک کر کے جانا سارے پھر میں جانا سی اسپتال پر میں سارے ٹھیک پانے کل تک بھی ہو سکتا سارے درد ٹھیک پانے کیونکہ وہ میری نعمت ارے میری نعمت نہیں ہے نعمت ہولی اسپرٹ کی ہے اس کی مرضی ہے یہ سب نے سارے ٹھیک کیے میں کسی مشن میں ہوتا تھا تو وہ وہاں بچوں کو بورڈنگ میں ہوتا میں بورڈنگ میں نہیں میں پڑھاتا تھا کسی شہر میں تھا میں نہیں بتانا چاہتا میں کیا ہاسٹل میں تھا جڑے بچے نے اٹھنا خدا نے ہم دعا کرتے انہوں نے نفری سی دعا تو فلانے نو بیماری کا بستر اٹھ کے شفا کا بستر ادا تھا میں کہا تیرا بستر انہیں صحیح دعا کرتے خدا جن رات جا رہے ہیں سارے صحیح سلامت پہنچا دے پہلے ڈاکو جاتے ہیں قتل ہی کرنے جاتے ہیں تسی پہنچاؤ سارے آپ کو کس نے کہا یہ دعائیں کرتے ہو خود دعائیں یسوع نے کبھی دعا کی کھڑا ہو کے ایسا کہتا آئے باپ جتنے یروشلم میں رہتے ہیں سارے شفا پا جائیں کی مجھے بتاؤ یسوع تو ہیلر تھا اس کے پاس ہیلنگ گفٹ نہیں تھا وہ ہیلر تھا he was a healer he was source of healing وہ شفا کا منبع تھا وہ شفا دیا ہاللیلویا لیکن اس نے بھی سارے ٹھیک نہیں کیا آپ کو کس نے کہا سارے ٹھیک کریں کبھی کبھی سارے مان لائیں گے سارے ٹھیک ہوگا ایک ہی ٹھیک ہوگا پیار کرتا ہوں ایک ہی ہوا سمجھ آ رہی ہے بات کی اس لیے سارے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے ہو آ جاؤ گے میرے کو تک جاؤ گے ساتھ چڑھ جائے گا تو پھر بات ایک تو گیا بدنام ہی ہو گیا تھک بھی گئے اپنی لت کی پیڑ شروع ہوتی ہے دعا کر کے آگے بیٹھ ان کو اس کی رہنمائی حاصل کرو اور خدا جہاں کہتا ٹیچنگ کرو توبہ کرو اگر توبہ نہیں کرتا میں نہیں بدل کروں میں تو سارا زور میرا تو بجے گا بات مجھے تو بونا پائے گا وہ تو بوا کا جا کے تو میرا کرو گا تو کر توبہ کا رہن جب یہاں منٹ تک بدل کرنا یہی تھا جس کو ہوش جس کے ہوش میں اس کی آپ حکم دے کہ جا کے ہوش میں اس کو توبہ کر اس کا کلام سے چلنا ٹھیک ہو جائے دو چار دن جھگڑا بھی ہوگا جم کرنا آ جائے تو بھی راحت ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر تو نہیں نا ہمیں بھی اپنی دوڑ لائی کہ تو پڑھ کے مہینہ پھر وہی پڑھتے رہیے وہ نہیں دیتے چار فرما کرنا بچا دیں ٹھیک ہے جو خدا سے آپ قدرت لیتے ہو قوت لیتے ہو مسئلہ لیتے ہو کلام سیکھتے ہو محنت کرتے ہو وہ خدا کی رہنمائی میں خدا کے جلال کے لیے اور روحوں کو بچانے کے لیے آمین چلو جی آجو جی اور نقشے والے بھی آجو یہ جو نقشہ ہے یہ واقعی نقشہ ہے اور یہ تمہاری سب کی تصویر ہے سب کے ساتھ یہی ہے میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں کہ کیوں نے پروفیسر صاحب نے شکل میں دی تاکہ نہیں ملی آپ دیکھ لو اچھی طرح سے اسی طرح وہ کریں کیا کہتے ہیں فوکس کرو اس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ انسان ہے اور انسان کے لیے اب یہ موالا پڑھتے ہیں انسان کے اندر روح ہوتی ہے جو اس کا بیسک سینٹر ہے اس کی علیحدہ اسٹڈی ہے روح کی اسٹڈی علیحدہ انسانی روح علیحدہ بات ہے پھر اس کے بعد اس میں جان ہے یہ جان کی پوری سے یہ 3 اسٹڈیز ہیں اس کی پوری بک اس کی پورا ایک چیپٹر بنے گا جان میں پھر یہ بدن کا پورا چیپٹر ہے بلڈ کیسے سرکولیٹ کرتا ہے بڑا علم آ گیا ہے اندر سے وین کیسے کیا ہے ایک نئی نالج آ گئی ہے کہ آپ کا یہ باڈی جو ہے اس کے اندر خدا نے کیمیکل رکھے ہیں کیمسٹری کو کہتے ہیں آپ کے کیمیکل بیلنس ہو جائیں آپ نبوت کر سکتے ہیں یہ سائنٹولوجی نکل آئی ہے اور کہتے ہیں میڈیٹیشن کرو تو کوئی خدا دوں نہیں تسی دلان دے پیٹ کھول دیا کرو میرے ساتھ بات کی تو یہ بڑا عام ہو رہا ہے یہ دہریے جو ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھے جڑے بھائی کہ بدھا بھی وہ کرتا سی تے یسوع بھی وہ کرتا تے بدھا نمبر 10 تے تے یسوع 7 نمبر تے گیا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں بہت گہریاں آج میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتا میں صرف آپ کو بتاؤں بدن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے باڈی کو کس طرح سے فنکشن کرتا ہے اس میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے یہ جان ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اور آپ کے باڈی کی کیمسٹری انہوں نے نکال دی سائیکالوجی ہے اس کے اندر پہ ذہن کیسے کام کرتا ہے نفسیات جیسے کا ذہن آپ جانتے ہیں دنیا میں کس کس طریقے سے موزے ہو گئے ہیں آپ کو پتا کہ تحریے بھی موزے کرتے ہیں آپ کو پتا کہ بدھسٹ بڑے بڑے موزے کرتے ہیں جو کتاب میں لکھا اور وہ آپ کی وہ غیر نہیں بولتے بدھسٹ میں بہت لوگ غیر بنے بولتے ہیں اس لیے تو جو غیر بانوں کے خلاف ہو سامنے پڑھ لیں گے ڈسرنمنٹ ہمارا ٹاپک کیا ہے روحوں کا امتیاز سچ کیا ہے تو جھوٹ کیا ہے کون سا خدا کے روح سے کام ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ بائبل مقدس کے اندر جل گئی کہ رہ گئی؟ وہ خود کی یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. اچھا ریفلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے. تو یاد رہے کہ آپ کو بائبل میں 4 لفظ مختلف قسم کے ہوئے ملیں گے. ان لفظوں کا مطلب ایک میں نے کہا تھا پاکروا، پہلے کیا تھا پاکروا، اس کی ایک پوری اسٹڈی، اس میں فرشتوں کا ذکر آئے گا، خدا کی ہستی کا ذکر آئے گا، اس کے آگے 7 لوگوں کا. اٹس اے بگ ٹاپک، یہ ایک نظر پڑے گی. اس کے بھی 10-15 چیپٹر بن جائیں گے پورے. روحانی عالم میں روحانی روح قدس کو جاننا، مقدسوں کے لوگوں کو جاننا، جو کامل کے مقدسوں پر فرشتوں کو اوپر کیا کیا ان کی کس میں کیا ہے، کیسے کام ہوتا ہے. اٹس اے فل فلیکس. اس کی یاد رکھیں، چھوڑے نہ. اگر خدا آپ کو توفیق دے پنڈی والوں کو تو میری مدد کرو، اور ہم مل کر آپ دعائیں کرو گے، روزے رکھو گے، رینج آپ میرے سے نہیں ہوتا، یہ میرا گفٹ نہیں، میرے سے نہیں ہوتا. میں ایسے پورا مجھے آتا نہیں، ٹیکنالوجی یہ وہ سارا کچھ وہ آپ کرو، آپ ٹائم نکالو، اور اس میں جو فرینڈس ہے اس میں مدد کرو، ہماری مدد کرو. ہم ہر مہینے اسی طرح سے ایک ٹرمینل کا لیا کریں گے، اور آپ کی یہ اسٹڈیز آپ کو ایسی گہرائی میں چلے جاؤ گے کہ آپ اب آخری زمانہ آ رہا ہے، جھوٹے نبی طاقتیں آنی ہیں، بدرویں نکال رہے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کئی پیر نکال رہے ہیں بدرویں. لوگ سوال کرتے ہیں بائبل میں لکھتا ہے شیطان کو، میں تو بات نہ ہو کسی جب اس کی اسٹڈی ہو شیطان کو نکال نہیں سکتا. اس پہ جواب کیا ہے؟ اور دیکھو کٹن دیا ہے انہیں جن رکھے نے سامنے کاٹ دا، اس نے لو تو کر کے ہو گیا، معافیا مانگ کے نکل گیا. ذرا یو پہ دنیا میں چیلنج ہو رہا ہے، سائنسدان نے کہا سیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دورہ کو نہیں ہوتی. ہم نے ثابت کرنا اس لائن کو جانا، ہم ثابت کریں گے کہ ہم زندہ خدا کو جانا، اور خدا کے فضل سے ہم سارے مل کر سیکھیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ بڑے بڑے کیسر میں کھڑے ہو گئے، آپ جیسے خادم جو آگے ہم تیار ہو گئے، جو زیادہ نالج جانتے، آپ کھڑے ہو گئے یوٹیوب اور چیلنج کریں گے ہمارا خدا زندہ، ثابت کریں گے. اور کہتے جی وہ تو بولتا جی فلانا فلانا خدا دے، ان کو نہیں بولتا، انہیں کیا بولتا ہے، وہ تو کام کرتا تھا ان کو نہیں کرتا، کر کے بتائے گا. ہاللیلویا. یہ بھی بتائیں گے جو جھوٹ سے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، اسے یہ ساری پوچھ لیا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پہلی کیا ہے پاک، اس میں خدا، اس کے پاک فرشتے اور وہ لدس. پھر اس کے بعد دوسری وہ ہوتی ہے شیاطین، جس میں بدرویں ہیں، گرے ہوئے فرشتے ہیں، اور ایول پارٹس ہیں، گناہ گاروں کے روح ہیں. یہ ایک لد ہے ناپاک. یہ جو ناپاک روا ہے یہ لد ایک پورا فیلڈ ہے. اس کی بہت، اس کے پورے مطلب ٹھیک ٹھاک اس کا پورا ٹاپک ہے، اس کی پوری ایک بک بن سکتی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کیسے کام کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس 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 کس. دوسرا یہ ہوگا تیسری قسم کی روح جو ہے، پہلی روح ہم نے کیسی کی پاک روا، خدا کی روح، جس کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا. اس میں بھی کئی خدا اور کئی خداوند پڑے نا، اور دنیا کے نزدیک کئی خدا اور کئی خداوند ہے. یہ بھی دیکھا جہان کا خدا، وہ کون ہے؟ شیطان. آپ کو خداؤں کا نہیں پتا کہ شیطان کتنی جگہ خدا بنا بیٹھا، اور لوگوں نے کتنے خدا. یہ پوری اسٹڈی ہے خدا. 10-15 قسم کے خدا ہیں دنیا میں. پھر آپ کو بتائیں گے جب خدا کی اسٹڈی پہ آئیں گے وہ آپ کا پاک روایت. دوسری شیطانی روایت، ان کی قسمیں، وہ ایک دوسرا ہے. تیسرا انسان جو ہم اسٹڈی کریں، انسانی. یہ کون سا ہے؟ انسانی روا. کیا سڑی ہے؟ انسانی روا. انسان کی روح ہے، انسان میں بھی روح ہے. آج ہمیں ان کی بھی تھوڑی سی اسٹڈی کرنی ہے، بہت نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹائم کے حساب سے چلنا ہے. اگلے سیمینار میں کنٹینیو رہے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ چیپٹر ہے. تو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر ایک میں حیران ہو گیا، خدا نے ایک دن میرے سے بات کی، مجھے سمجھ نہیں لگا خدا ہے، میں نے تو کبھی غور نہیں کیا. تم کسی کو والا یاد ہے تو مجھے جہاں لوکا کی انجیل میں وہ انہوں نے یسوسی کو ان کو باہر نکال دیا تھا، پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. چوتھا جو ہے کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ نہیں سمجھتے. والا کے ساتھ پڑھیں گے تو ذرا جلدی سے بتا دیں کہ ہم ہے کہ انہوں نے باہر نکال دیا. پہلے کہ خداوند اگر ہم بات مانگتے ہیں پھن کے رکھ دینے ہیں. پنجابی چینجی لکھا ہے، پنجابی بات چینجی لکھا پتا ہے ہمیں جاتا ہے پھن کے رکھ دینے کا. پنجابی بارے میں سناتا ہوں نا، میں جاتا ہوں پنجابی میں سناتا ہوں. یاد رکھیں جلدی سے نکالیں جس کو. ہاں میرے کو مل گیا لوکا 9. تھینک یو جلدی ہو گیا. اب سنیے ذرا 51 آیت سے لکھ لیجیے. لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اور 51 سے 56. دھیان سے سنیے، یہ بڑا خاص ٹاپک ہے تاکہ آپ کو ایک نئی چیز سمجھ آئے. یہاں لکھا ہوا ہے جب وہ نزدیک آئے وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے. وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ
यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावन, याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें भस्म कर दे? ब्रैकेट में अगर लिखा क्या, क्यों कहा उन्होंने? जैसा एलिया ने किया। मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते, मेरे पीछे बोलो, तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो। समझ आई बात की? 56 है, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये रूह जो लफ्ज लिखा हुआ है, ये कोई बदरूह नहीं थी। यीशु ये नहीं कहता तुम में बदरूह है। यीशु ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी अपनी रूह खराब है। यीशु से ने ये भी नहीं कहा था कि खुदा के रूह का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट को भी रूह कहा। स्कूल ऑफ थॉट होता है जो आपको दिया जाता है सिटी में। स्कूल ऑफ थॉट आप करते हैं। आप ओल्ड, उस वक्त क्या था, पुराना ड्रामा नया था कि नहीं था? मसीह के जमाने में बोल दो, चीज बोलो। नहीं भी था तो लिखा नहीं गया था, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। स्वाय वो जो यीशु ने भारी बात है, ये शुरू में लिखने शुरू कर दिया। इसके अलावा किताबें तो 30 साल बाद लिखी। कैसे से पाप रूप प्रयोग रहता था लिखते। याद रहे, इंजील अभी तक नहीं, पुराने ऐतनामे की। पुराने ऐतनामे के तहत वो यहूदी थे कि नहीं थे? वो यहूदी थे सारे। उनका स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का स्कूल ऑफ थॉट कौन? अगर आप दाऊद के पूर्व पढ़े ना के परिचय जब के अंदर खुदाया ना तक तारीख जड़ जाए, उन्हें तक तेरा तबाह हो जाए, उन्हें फलाना हो जाए। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। अपने दुश्मनों से क्या करो? अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों के क्या करो? ये स्कूल वाली बात नहीं। नहीं, वो तो यीशु ने कहा। पुराने में तुम्हें कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत करता कह रहा है। पत्थर इनका जवाब पत्थर से दे। ये ओल्ड टेस्टामेंट थॉट, शरीयत का थॉट, पुराने यीशु के आने से पहले का थॉट। क्योंकि वो जिस्म में चलते थे और वो जिस्म की शरीयत को उसके बड़े नाम है। याद रखिए, मूसा की शरीयत या ओल्ड टेस्टामेंट की जो पूरा लॉ है, वो सिर्फ मूसा की शरीयत नहीं है, उसके आगे भी लॉ जो नबियों के सीधे है, सारा कुछ है। वो पूरा का पूरा फर्क थॉट रहा। थॉट रूह का मतलब तुम कैसी सोचते हो, तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट क्या है? स्कूल ऑफ थॉट है हमने एलिया से सीखा है। जैसे एलिया ने किया था, उन्हें क्या, अगर वाकई में खुदा था नबी तो हमने भून देते। मसला के अंदर क्या देगा बन जाएगा। लीशा ने क्या किया बताओ मुझे? बच्चे ही मार दिए पालो के चक्कर में रसूल नबी बनने और आज को खुदा के बंदे बनना मार दो। कहता मैं ये करने नहीं आया, तुम मुझे पुराने स्कूल ऑफ थॉट के, तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो। विच स्कूल ऑफ थॉट टू फॉलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओल्ड टेस्टामेंट थॉट में चलते रहते हो, नए में भी आगे या पुराने में चलते? नए का थॉट फर्क है, वो मसीह का थॉट है। तुमसे कहा गया था पड़ोसियों से क्या करो, मोहब्बत रखो और दुश्मन से, लेकिन मैं तुम्हें नया थॉट दे रहा हूं। तुम क्या करो? दूसरे से मोहब्बत रखो और दुश्मनों से मोहब्बत रखो और स्थाने वालों के लिए न्यू स्कूल ऑफ थॉट। तुम नहीं जानते तुम कैसे, तुझे तो ओलिया वाला काम करना चाहते वो उससे पेड़ चो सामरिया चो बात जो औरत बात की पत्नी किन्ने बात को दिखवाई ना उन्हें भुन बन के रख देना। पुराने आलना में उन्होंने जी आग मांगने जरा हुक्म दे देखी अभी भी बैठे हैं। बड़े पीर ने आजकल है क्रिश्चियनिटी में लामता कर गए। मैंने खुद देखा कोई उन्होंने गल ना वो खिलाफ तो हम कर गए खुदा होता उठ जाए वो बंद हो जाए, लेकिन पता नहीं कौन क्या लेता अब करके ना मंडे बंद हो जाए। मैं मंडे ना बरकता उल्टियां तो बंदे बंद केड़ी सोच रहा। मेनी पीपल हैव sometimes influenced by devil, कभी कभी शैतान को सीखना, कभी कभी उनकी अपनी पर्सनैलिटी करती। कभी जी हमारी बात सुनेंगे बड़ा तबाह होगा पुरानी मिशन, उसे मिशन तबाह करना है कि मिशन खुदा दे नाल ਵਧਾਉਣਾ है। प्रे फॉर देम कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਾਵਰੂ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣ जिन्ने आ रहे हैं खुदा उन्होंने अपने जलाल नहीं इस्तेमाल करे। मकसद तो खुदा का जलाल है, कोई मकसद लैंप बताई या लंगर साहब का जलाल करे। काम तो खुदावंद का होना चाहिए।
हालेलुया। हमें भी तबीयत तो चलो जो करते करेंगे, तो नहीं हमारे लिए तो ठीक है, दूसरों को भी खुश होना चाहिए। अगर और खादम इस्तेमाल होता, खादमा इस्तेमाल तो खुश होना चाहिए। याद रहे, पता नहीं आपको लोग कीड़ी कीड़ी अडुआ देते हैं चलते हैं, और वो अपने अनुपात में तो तब भी समझ रहे हैं ये नॉट अंडर द हैंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस स्कूल ऑफ थॉट, पूरा स्कूल ऑफ थॉट ही चेंज है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ साधो प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना, पूरा स्कूल ऑफ थॉट ही चेंज है। सिर्फ अखलाकियात चेंज नहीं है, बल्कि अखलाकियात का लेवल बढ़ गया। अखलाकियात समझ रहे हो ना, पहले गुस्से नहीं होना अपने प्राप्त, पहले किसी कत्ल करना गुनाह है, उनकी कह रहे हैं बतानू गुस्से भी नहीं होना, मैं निजात दूंगा गुस्से से, लेवल बढ़ गया है अखलाकियात का, वो रहेगी। आमीन। माँ बाप की इज्जत करनी है, बदला नहीं, 10 कानून बदले नहीं है, लेकिन उसका लेवल बढ़ गया है। तू सुना, लेकिन अब क्या कह रहा हूं, कोई नजर से तुम्हें निजात दूंगा, पाक कर दूंगा, तुम्हारे दिल अगर सही पाक हो जाए, तुम्हारे अंदर ख्वाहिश ही खत्म होगी इस तरह खुदा के कलाम के ताबक। हालेलुया। मेरी मानो बनो, यीशु कहता है, जैसे मैं मसीह की मान बनता हूं, पौलुस कहता है आमीन, मसीह की मान बनते जाते हैं जितना ज्यादा पाक रूखी और कलाम की गहराई में जाते हैं। हर उसके बदल पर्सनैलिटी बदल, सोचे बदल जाती, तरीकेकार बदल जाते, आपके साथ ही होना चाहिए। समझ आ गई बात की। अब आइए, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको कहा था क्या क्या दिखाया हुआ है, रूह है, जान है और बदन। आज अपने नोट्स की तरफ चले, वहां बहुत हवाले हैं, ताकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं आज सिर्फ इन तीनों को हम खत्म करेंगे कि ये वाकई बाइबल के मुताबिक ये स्केच जो है ठीक है, बाद में ये सारी चीजें इनके एक एक टॉपिक है पूरे। और आइए पहला हवाला पढ़िए, क्या कलाम में लिखा है कि इंसान जो है सिर्फ रूह और जान या बदन का मरकब है? क्योंकि जनरली ओल्ड टेस्टामेंट में भी और नए में भी चंद लोग जानते थे कि इंसान की रूह भी होती है, इंसान की जान भी होती है और बदन भी होता है। ओल्ड टेस्टामेंट चंद लोग, बाकी रूह और जान को एक ही चीज समझ। उसकी वजह सुनो ध्यान से, क्या कल्चर में पूरी दुनिया में आदम से लेकर ज्यादा लोगों को जो खुदा के नहीं थे, उनके अंदर एक ही बात है कि बंदे में 2 ही चीजें होती हैं, जान और जिस्म। इसलिए यीशु से भी जब बात करते हैं जन्म में डालने की, तो वो कहता है कि तुम्हारा बदन भी डालना, तुम्हारी जान बचनी चाहिए। यीशु रूह को जानता था, रूह की तलीम दी है यीशु, इंसानी रूह, लेकिन यीशु यहूदी टर्मिनोलॉजी बोलता है। और मैं एक दिन खुदा से सवाल, अपनी किताब दूसरी मेरी कराना सेकंड का मेरा प्राइस में मैंने काफी लिख लिया, उसने खुदा ने मुझे मुकाशफा बताया, खोल के बताया बाइबल के हवालों के साथ, कि उस वक्त मैंने कहा यीशु ने तो खुद जान और उसका जिक्र किया, जान और जिस्म का ज्यादा जिक्र किया, क्योंकि वो यहूदियों में से था और उसने यहूदियों की टर्मिनोलॉजी में बोलना था। वो चिड़ियों में बोलता था, आजकल होता, उस वक्त किसका बोलता था, उस वक्त उस जमाने के लिहाज से बोलता था। आज उन्हें कंप्यूटर की गला करनी थी, आज उन्हें जहाजों की बातें करनी, क्योंकि लोगों को समझ आनी थी। उस वक्त यीशु से बात करता था, भाई जहाज भैया ना तू करके फोन दो ना करो, कहीं से जहाज की बात नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो था ही नहीं, उनके नाम ही नहीं। इसलिए याद रखें, हर जमाना में जो टीचिंग दी जाती है उस लेवल पे दी जाती है, जो उसी तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, ताकि लोग, सादा लोग भी बात को समझ सके। लेकिन ऐसा ऐसा न्यू चीजें रेवल्यूशन कहता है, मैं बाकी भी रूल को दर्शाएगा तो मिलता है। आमीन। बेसिक चीजें दस दिया नहीं, कैसे रूल में जानते यीशु की अपनी रूल थी, पता क्या नहीं पता। यीशु जब इंसान बना कामल, तो वो कामल इंसान था, उसमें क्या थी, रूह थी कि नहीं थी? क्या कहा था उसने, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में बताओ, रूह थी, जान थी कि नहीं थी? इसके वाले आएंगे, है ना। अपनी जान ही का दुख उठाकर मेरा सादा सादा बहुतों को रास्ता करेगा। किसका दुख उठा, जान का। समझ आ गई बात की, जान का। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु का बदन भी था, जो उसे बदन इख्तियार फ्लैश बना। आमीन। और उस बदन में क्या था, रोटी भी खाता, देसी घी खाता होगा, पता नहीं खाता तक नहीं खाता, लेकिन देसी घी था, प्योर चाहता, दो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है नहीं। यीशु से दही खाता था, चैट करता था, ये था उसकी परफेक्ट पाक बंदा और मेहनती। कभी किसी लकड़ा को आपने देखा, ये कारपेंटर तो साढ़ा यीशु क्या हो जाता है, सड़िया काला जो तो नहीं, मैं मेरा
وہ اتنا خوبصورت تھا, جوان آج کا 33 سال کا وہ لڑکا جو محنتی ہو, ہی واز باڈی, اس کی بہت اچھی بیلٹ تھی. کیسے؟ اس میں پوری کتاب لکھی گئی ہے, لکھی جا سکتی ہے, لوگوں نے بھی کچھ نہیں لکھا. اس کو واکنگ کتنی تھی اس کی 33 سال میں جب وہ پریچ کرتا تھا 7 کلومیٹر. کیوں جی؟ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتے تھے, ادھر سے چلتا تھا یودھیا سے پورے یروشلم نازل کر کے شام کو واپس آ. وہ اس زمانے کا تو, اس زمانے میں سائیکل کو نہیں تھی, اس زمانے میں گدھے تھے. کئی کہتے نہیں کہ مقدس سواریوں میں ایسی مقدس سواری لے جانا, گدھے تھے بہ کے جانا, امریکہ سے گدھے تھے بہ کے جانا. ارے بھائی وہ زمانہ تھا, اس وقت وہ نہیں جاتے تھے, اس وقت ویزے نہیں تھے, اور اس نے کا لڑ اب ویزے بھی لگتے ہیں. بالکل ہر زمانے میں چینجز آتے, لیکن خدا ایک ہی رہتا ہے. ہاللیلویا. اور گناہ اور لڑائی اور جھگڑے شیطانی نہیں آتا, وہ چلتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی چینجز آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس لیے سمجھ آ گئی کہ روح جان اور بدن ہم میں سے آ رہے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھا کہ پڑھ لیجیے, روح جان اور بدن کا مرکب ہے. آئیے پہلا تسلیکیوں, یعنی تسلیکیوں کے نام پلوس سے کا پہلا خط, اس کا 5 باب 23 ہے. یہ بڑی مشہور ہے, مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی, آج مجھے صبح اس کی پوری سمجھ آئی. پڑھی میں نے کئی دفعہ, لکھی میں نے پرانی یا 25 سال پرانی, یہ وہی وہاں سے لکھی ہے. 5 باب اس کی 23 آیت پڑھیے ذرا. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, آپ بھی تم کو بالکل پاک کرے, اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. آمین. پہلا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ اس میں 3 چیزوں کا ذکر. کس کا؟ روح کا, جان کا اور بدن. کلیئر سب کو؟ ہم کیا ہیں بولو اپنے لیے. میں روح بھی ہوں, میرے اندر انسانی روح ہے, میں انسان ہوں, میرے اندر روح ہے, اور میری جان بھی ہے, اور میرا بدن بھی ہے. سب کو نظر آتا ہے. آمین. یہ فلیش بھی ہے, اور یہ تینوں کے دنوں اگر اس میں سے بدن میں سے روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے. کہ مطلب جلدی سے بہت پہلے نہیں مرتا. یہی تو قانون پتہ ہے, تو دفنا پڑنا. روح جا سکتی ہے, ٹریول کر سکتی ہے, جادوگروں کی بھی کرتی ہے, ایمانداروں کی بھی کرتی ہے. لیشا نے کیا کہا, جب تو کپڑے لینے کے لیے لالچ کر رہا تھا, دال آ رہا تھا, لیشا نبی نے پچھو چپ کر کے چلا گیا پیسے لینے, انہوں کو نام لینے. لیشا کہ میں نہیں لیندا, تو میرا شکر ہے, تیرا کیوں ہمیں پیسے لالچ کریں, غیر قوم آیا تو تو لالچ پیسے سے پہ گئے. لیشا اس کو کہا تجھے نہیں پتا جب تو جا رہا تھا لینے کے لیے میری روح تیرے ساتھ مرنی سے کیا. اور اس کے تجربے ہمیں بہت اگلا والا. اگر آپ پہلے دوسرا کلمہ کو 12 باب پر کیا لکھا ہے, پولس کہتا ہے ایک شخص کو جانتا اپنی طرف بات کرتا ہے. کیا کیا گیا تھا؟ تیسرے آسمان پہ آیا تھا, لیکن یہ نہیں پتا بدن سمیت یا بغیر بدن کے. مرا نہیں تھا, روحانی بدن اوپر جاتا ہے. میں آپ کو شو نہیں ماننا چاہتا, کوئی ادا نہیں مجھے سمجھ میں. ارلی اسٹیج پہ مجھے بہت ایسے تجربے ہوتے, میں 18 گھنٹے دعا کرتا ہوں, اور مجھے اگر میں نیچے گھٹنے دے کے دعا کر رہا ہوں, اور میں آپ کو اوپر تک جانا چاہتا ہوں. آپ کی روح جاتی. بنا کر ہر سال جب تک وہ زندہ تھا جنوری روزے میں ٹھہرتا تھا, آسمان میں جاتا تھا, مرتا نہیں تھا. اس کا باڈی اور اس کی جان یہی تھی. جان نکلے گی تو پھر مرو گے. جب تک اس بدن میں جان ہے نہیں مرے گا بندہ. روح نکل سکتی, روح آپ کی نکل کے کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے, اور ابھی مرے نہیں. روح جانے سے نہیں بندہ مرتا. بتاؤں گا یہ روح کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی جان جب وہ زندہ کرتی ہے, آپ کی جان آپ کے بدن کو زندہ کرتی ہے. جان کی اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ کا ایک روحانی بدن بنتا ہے جو کہ پرانی انسانیت اور پرانی روح کا انسانی روح کا, اور جو خدا سے جدا روحانی بدن ہے وہ روحانی بدن بھی ہے. کہ جنہوں کہ میں پڑھاتا ہوں پیوارے آپ کو, روحانی بدن بھی ہوتا ہے, جسمانی بدن بھی ہوتا ہے. فزیکل باڈی بھی ہوتی ہے, اسپرچل باڈی بھی. ایک اسپرچل باڈی ہے جو خدا سے جدا ہے, وہ کیا ہے؟ مردہ روح ہے, خدا سے جدا روح ہے. مردہ سے مراد خدا سے سیپریشن. جیسے آدم نے گناہ کیا تو کیا آپ کی جان نکل گئی؟ بتائیں مجھے. لیکن وہ مر گیا. کیسے مرا؟ اس کی روحانی طور پر جدا ہو گیا خدا سے, روح اس کی مر گئی, یعنی روحانی موت, خدا سے جدا ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
تو آدم کی روح کے ساتھ خدا سے جدا ہونے کے سبب سے خدا کا تعلق اس روح جان بدن سے ٹوٹ گیا. اب اس کی جان جو ہے جو پہلے روح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی اب وہ جسم کے وسیلہ سے شیطان اور دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک وہ خدا کے ساتھ تھا اس وقت تک اس کی روح جو تھی جب وہ اس میں تھا یہ روح جو تھی اس کا کس کے یہ روح وہ آپ کا حصہ جس سے آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہو کمیونیکیشن کرتے ہو اور اس کے وسیلہ سے روحانی شخصیت کے ساتھ روحانی چیز کا کمیونیکیشن کر سکتی ہے کیونکہ آپ روح ہو. اب میں ساتھ آپ کو سان کر دوں اور کہ تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے کہ ہر چیز میں روح نہیں ہوتی. خدا نے 3 قسم کی کریشن کی. کتنی قسم کی کہہ رہا ہوں؟ 3 قسم کی مخلوقات بنائی. پہلی مخلوقات ہے جس میں صرف باڈی ہوتی. پہاڑ بنایا اس کا باڈی ہے, درخت بنایا باڈی ہے صرف, پانی بنایا باڈی ہے صرف, اس میں جان نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ کیونکہ جو باڈی ہے محض باڈی ہے دنیا میں بہت پتھر ہے باڈی ہے یا آپ نے باجا بنایا بے شک لکڑی سے بنایا لوہے سے بنایا بات تو ہے تو باڈی ہے اس میں کوئی جان نہیں. دوسری کچھ چیزیں بنائیں جن میں بدن بھی ہے, ان کا بدن بھی ہے باڈی بھی ہے اور اس میں کیا ہے جان ہے. وہ بتا سکتا جلدی سے کون کون؟ میں نے بتایا پرندے جو ان میں جان ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر زندگی ہوتی ہے اور اڑتے ہیں. اور بتاؤں گا کہ ذہن بھی ان کا مرضی بھی کے ساتھ ساتھ. کبھی آپ نے کسی چڑیا کو ان کا بوٹ مار دور ہوتے دیکھا ایسے داس ہوتی ہے وہی ساتھ ساتھ. کبھی آپ نے ہاتھی کو کسی جانور پر ہوتے دیکھا کسی گائے کا مار اس کے آنکھوں میں ہوتے جو جانا چاہتے کھانا کھانا چاہتے اس والے کھیت میں رہتا مرضی پھر ان کا زیر ہوتا کہ کدھر جانا لگتا. بے شمار چیزیں ہیں, پرندے ہیں چرندے ہیں جانور ہیں چیزیں ہیں, ان کا کیا ہے ان کا باڈی بھی ہے اور ان میں جان بھی ہے. آمین. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب یہ دوسری کریشن ہے. کیا ہوتا ہے یا ایسے ہی بندہ جانور مرا کام ختم کیونکہ وہ ابدی نہیں ہے. آمین. اس کا سٹارٹ تو ہے لیکن اس کا اینڈ بھی ہے. جیسے وہ مرا مٹی بھی چلے گی جان ختم خون ختم جان ختم ہو جائے. جان کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو کہ ان چیزوں میں. تیسرے خدا نے انسان کو اپنی مان بنایا, اس کو باڈی بھی بنایا. باڈی بنا کے باڈی کس سے بنائی؟ مٹی سے پہلے بنی, بعد میں اسی سے ملٹیپلیکیشن آتی ہے. بنتے ہم بھی کیمیکل سے کیمسٹری سے بنے ہوئے. عمر صاحب ہمیں بولتے لے کے تاڑے اندر بھی لوہا ہوئے تاڑے اندر بھی سونا ہوئے تاڑے بھی ہوئے گا ادھر پر دیکھ رکھا تیرے اندر بھی پتہ نہیں کیا آگا انہیں میری بہنوں میں بھی اپنے کیا کیا کڑی کڑی کیمسٹری اندر سب میں ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزوں سے ہم بنے ہیں. اگر وہ ہمارا ٹکڑا لے کے اس کا انالیسس کیا اس میں لکھ رہا ہے کتنا لوہا اتنا پڑا اتنا کہتے نہیں آئرن کی کمی ہوگی ہم دیکھ نہیں ہوتی. کئی چیزیں جو ہمارے باڈی میں ہیں اس سے بن کر ہماری کیمسٹری بنتی ہے. یہ باڈی جو ہے یہ خاک کی ایسی ہے تو خاک ہے خاک میں بنے ہم خاک سے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب آپ کا باڈی بھی ہے اور آپ کے اندر جان بھی ہے اور خون میں جان ہے. کس میں جان ہے؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے میں نہیں لکھا. خون میں خون نہیں کھانا اس میں جان ہے. جان فزیکل ورلڈ میں فزیکل ورلڈ کو اردو کا طبعی دنیا یہ والی دنیا نیچرل قدرتی دنیا یہ جہاں ہم رہتے ہیں مٹیریلسٹک دنیا جسے کہتے ہیں مادی دنیا. اس دنیا میں اگر جان نے اپنا آپ کچھ دکھانا ہے تو وہ کسی بدن کی اس کو ضرورت ہے. اس بدن میں وہ بلڈ کے اندر وہ جو کہتے ہیں وائٹ سیل فلانے سیل یہ پوری کیمسٹری ہے اور جان اس کے ذریعے سے مینیفیسٹ کرتی ہے اور اپنی تینوں چیزوں کو مرضی کو ذہن کو احساسات کو اس سے لیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا برین کام نہیں کر رہا لیکن جان اس میں موجود ہے. اللہ چلن دیا خون ہے چلن دیا بندہ ڈیڈ پہ آ کر کے ڈیڈ دے تو قبرستان نہیں ہاتھ دیا جاتا چلن دیا خون بھی چل رہا جان ہے. جب تک جان نہیں نکلتی بندہ نہیں مرتا. دماغ نہیں کام کر آپ بھی نہیں کام کر کیونکہ آپ ذہن جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئے لیکن جان ابھی تک اس میں موجود ہے. اس میں یاد رکھے اس کی مرضی جو ہے کیونکہ ویک ہو گیا بہت
जितना ब्लड कम होता है, आपने देखा नहीं बॉडी काम नहीं करना, दिल नहीं करता, जिनका ब्लड कम होता है उनसे पूछो भाई जी तो वहां कर मैंने बुजुर्ग बड़ा तंग कर मैं की होया केड़ी बदलू हो भाई जी हमके दादा तो ताई काम कर थल्ले तक जान नहीं तो मैंने कहा भैन डॉक्टर ने बखा लेना नहीं भाजी अंज दादा तबीज पा मैं कहता डॉक्टर को तबीज पूछ लेनी जाके टेस्ट कराया पता लगा कि 6 के 7 है ब्लड 6-7 मेरी बहन का बहुत हो जाता बहुत बहन है उनका हो जाता 6-7 ब्लड रहता है तुरंत ही जब आपकी तो जान खत्म हो रही आप वीक हो गए आप जल्दी से बीमारियां आप पर आएंगी आप जल्दी मर जाओगे तो याद रखिए खून जितना अच्छा आपका हीमोग्लोबिन और वो क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा कम से कम एक क्वांटिटी अब होनी चाहिए तो मेरी बहनों को अक्सर काम होता है मुझे कहते रहती है मुझे पता दुआ करके तो वो कहने के बदलू अरे बदलू नहीं आई ये खुदा का सिस्टम बनाया आपकी जान ने आपके हेल्दी ब्लड के वसीला से मैनिफेस्ट करना है मैं बोल देता हूं तुम्हें आपके खून के वसीला से ब्लड के वसीला से क्या करना है जो हेल्दी खून होगा जितना खून ज्यादा स्ट्रांग होगा आपकी जान ज्यादा काम करेगी बॉडी के थ्रू और वो अपनी मर्जी को अपने ज़हन को अपने साथ को ज्यादा काम करेगी इसलिए जान एक फर्क थी वो जानवरों में भी है वो आप में भी लेकिन रूह जो है वो सिर्फ इंसान में समझ आ गई बात की तो आपका आप एक और पढ़ लें ताकि आपको पता लगे कि एक ही नहीं है ये जान जो है इसके लिए मेरे पास वो नहीं है आई डोंट हैव समथिंग राइट पर एक बड़ी खास चीज के बारे में बताई थी आई चलो मैं देखता हूं पेन है तो दे दीजिए मेरे ये देखिए जरा इसमें मैं 3 चीजें बनाने लगा हूँ ये अभी इसका मैं लेक्चर सुनाऊंगा ताकि मैं आगे पढ़ूंगा तो आप सबको नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है थैंक यू क्या आप इसमें मैं 3 चीजें करने लगे ये 3 टुकड़े हो ठीक है अब आपके अंदर क्या है जिस्म है या बदन है जिस्मानी बदन में इसको कहूंगा यानी एक मादी बदन की सादा मादी बदन का मतलब ये वाला मेरा बदन आपका बदन ठीक हो गया अब आपके अंदर जान ये क्या सोल इंग्लिश में ज्यादा अच्छा जानते हैं सोल इसमें जानते हैं बॉडी ठीक हो गया माथी बदना और ये जान समझ आ रही बात की अब आप हैरान होंगे यहाँ एक और बदन है मैं अभी आपको वाले पढ़ाता हूँ रूहानी बदन कौन सा बदन एक रूहानी बदन भी है आपकी शख्सियत के बदन रूहानी बदन अब आपका ये जो जान है ना जब इस बॉडी के थ्रू काम करती है क्या बोल रहा हूं जब ये जान बॉडी के थ्रू काम करती है बॉडी कौन सी है मिट्टी की कलर किया हुआ मिट्टी ये मिट्टी का है समझ आ गई बात अब ये जान खून के वसीला से ब्रेन के वसीला से ठीक है आपका ब्रेन जो वो कहता है दिमाग जो ठीक उसके अंदर से जहन को भी करती है कंट्रोल क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेट करता है ये बॉडी में वो जान इसमें काम करती है किसके लिए मादी दुनिया में समझ आ रही है बात की ये आपकी जान इधर भी काम करती है अब आपकी यही जान जो इंसानों की जान है वो खत्म नहीं होती उस जान के अंदर हमने भी सीखना है कि मर्जी है दिल है एहसासात है जब वो इस बॉडी के अंदर है तो वो इस बॉडी के अंदर उनको एहसासात होते हैं और वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे इसको खोलेंगे ठीक है अब असली बात मैं करना चाहता था कि आपको समझ आ जाए आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर नजर आ रहा पीछे भी ये 3 चीजें हैं तो इसमें हम देख रहे हैं जब आप मर जाते हैं ये बॉडी जो ये तो जान तो निकल गई अब यही जान जब आपने आसमान पे जाते हैं तो आपके रूहानी बदन में दाखिल होकर रूहानी बदन जो है वो मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको भाई रूहानी बदन भी रूहानी जिस्म भी रूहानी जिस्म के साथ रूहानी आलम में काम करती है और रूहानी आलम में भी प्रस्तुत हो रही है
तो खातू ऊपर भी कस्तश हो रही है। नेक्स्ट मिसाल ले लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा खुदा का खादिम भाई अनस वाला, वो ऊपर जाते हैं, मैं बेदल किया जा चुका हूँ, खबर है मिट्टी उसकी पता नहीं अब तक फटियां उठियां बच्ची 10 साल, लेकिन वो अपने रूहानी बदन में ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर करेक्शन, आई एम सॉरी कि मैं आवाज आ रही थी, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ये 3 है, आपका जिस्मानी बदन है, आपकी जान है, अगर आप रूहानी हैं, अभी दम जो रूह से पैदा हुए हैं, उनका रूहानी बदन खुदा के साथ रफाकत रख सकता है। मरने के बाद भी वो आपका बदन जो है वो तो खत्म हो जाएगा, खाक तू खाक है, खाक में चला जाएगा, लेकिन आपका जो रूहानी बदन है उसके वसीला से आप रूहानी आलम में चले जाओ। कहां पर? आसमान पर, खुदा के पास। हालेलुया। और उस रूहानी बदन में आपकी जान, ये वाली ये खिड़की बनाऊंगा, जब मैं बनवाऊंगा, मैं शायद लकड़ी का बनवा लूं, जब आप इधर करेंगे जान तो वो दुनिया में काम करती है। जब ये बदन खत्म हो गया, आप रूहानी बदन में चलेंगे, आप रूहानी आलम में चलेंगे। हालेलुया। तो समझ आ रही है? और फिर खुदा के ऊपर जाकर जज्बात भी होने चाहिए। प्रस्तुत कैसे होती है? दसो बड़े बड़े प्रस्ताव हैं, गाँव वाले प्यार से होती है, आंसू आते हैं, चूमने को दिल चाहता है, सीधी क्या है? एहसास। आप अक्ल इस्तेमाल करते हो, कभी कभी दिल चाहता है तो प्यार ही चुमी जाइए, कभी कभी दिल चाहता है खड़े होकर उसकी देते रोते जाए, कभी कहते उसको निपट जाए। हम जब उसका तजर्बा करते हैं रूहानी आलम में, तो आपकी रूह, आपका जो रूहानी शख्सियत है आपके अंदर, जो आप नई पैदाइश पा चुके हो, जितने ज्यादा दुआगो होगे, जितने गहरे रफाकत में जाओगे। मैंने इसी मंडे को इश्क़ मसीहा पे बताया था, थोड़ा सा बताया था, मैंने ABC बताया था। इश्क़ मसीहा है जैसे बादल पे क्यों नजर करे, आपके बदन के अंदर से, याद रहे, बदन में से हम निकल जाएंगे, आप बदन में से निकल जाएंगे, आप रूहानी आलम में दाखिल हो जाएंगे। आप रूहानी शख्सियत, जो रूहानी आप बदन रखता है, आसमानी बदन, अभी पढ़ाता हूं आपको, तो फिर आपका रूहानी तौर पर रूहानी बदन के साथ, मसीह के साथ, खुदा के साथ मुलाकात होगी। जब खुदा की स्टडी आएगी फिर उसको डिटेल से बताएंगे कि कैसे इस बदन में होती है मुलाकात। समझ आ रही है बात की? मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? समझ आ रही सबको? जब मैं रूहों के आलम में आ जाता हूं, जिसे कहते हैं रूह में आ गया, जिसमें होते बैठा है, आप जब बेखुद हो जाते, कभी कभी ऐसे भी होते, आप रूह में आ गए, फलाने दिन में रूह में आ गया, क्या कहा गया में? फिर उस फरिश्ता ने कहा, आसमान खुल गया, कहाँ आ जा? ऊपर आ जा, बदन समेत या बगैर बदन के? बगैर बदन उठे के पतमस किसी फास्टर साहब मैं गलत क्या था, मैंने नहीं डालना था, मेरे को गलतियां हो सकती हैं, ऐसे ही है ना? जमीन नीचे ही है, वो रूहानी बदन में रिश्ते के साथ आसमान में चला गया, आसमानी चीन देखने के लिए। हालेलुया। पर उस कहता मुझे नहीं पता बगैर बदन के या बदन समेत, कहता मुझे जान के कह रहे हैं कि बोलता नहीं मुझे समझ, अगर मैं समझ सकता वो मुझसे बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। हम तो कुछ भी नहीं, आई नो कि कैसे पड़ जाता, मुझे पता है कि रूहानी आलम क्या है, सफर कर सकते हैं रूहानी आलम। आप यहाँ बैठे बैठे ये गहरी तालीम है, घबराना जाए, जादूगर सिर्फ नहीं मूव कर सकते, हम जो रूहानी है रूह कुदस के वसीला से, लिशा की तरह, दूसरों की तरह अगर यहाँ बैठे हुए हैं। फिर मैं बताऊंगा, इस समय मैंने खोला था कि कई लोग इतने तस्वीर में देने टीवी वगैरह, तो समझे आसमान पे पहुंच गए, आसमान पे वो नहीं पहुंचे, वो आप टीवी में देख रहे हो, स्टेशन पे वो नहीं पहुंचे, जिस दफा आसमान पे खोला था उसके मैंने डिफरेंट तजर्बे बताए। सब लोग आसमान पे नहीं जाते, मैं आज आसमान पे गई सा गया था, मैं तो कई बार ही गया, इतने ही नहीं तो कितने काम मान के तो कितने चले गए। आपकी उतनी प्रतीसगी नहीं है, आपका उतना म्यार नहीं है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन नजर आती नहीं है, पता लग जाए हर एक मुकाबला नहीं तो ऊपर नहीं समझा, कहीं कहीं यही फिल्म दिखा दी जाती, कभी कभी ये क्यों आता नीचे हमें मिलने, मतलब बोलते हैं आप मैनिफेस्ट कर देते, फिर उसके भी आगे लेवल कि आप कितना लेवल। मैं कोई इम्प्रेस करने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ की भूख होगी, मेरे अंदर बातें खुलती जाती और मैं पापों के मत्था में बोल रहा हूँ। कुछ समझ आ रही है बात आपको? इसलिए याद रखे, रूहानी आलम को समझना इतना इजी नहीं है। कई लोग वीएन देखते तो कहते हैं कि मैं तो यीशु देख ही आती है, इसकी यहाँ पर भी आती है हर जगह में, लेकिन कई कहते हैं आसमान पे उतरते, वो फिल्म देखने गए होते, समझ आ गया, टीवी उठते नहीं गए, वो नीचे दिखा देता था, आप ऊपर खोल नहीं गए,
आप हमें ऊपर इशारे करते रहते हैं, ऐसे नहीं कहीं होते जाकर क्रिकेट ही खेल रहे हैं, पता नहीं है ना, पढ़िया जी ना किताबा मैंने खुदा उत्ते रह गया तो फिर मैं उधर फिर क्रिकेट खेल, क्योंकि क्रिकेट जो पसंद करती, जो उधर दिमाग होना हो जी होया होनी है, वो ही जन्नत होनी है, जिस तरह की टीचिंग दी हुई, जिस तरह का दिमाग बना हुआ। मुझे ये दसो यसू उत्ते वेला क्रिकेट ही खेलते रहते, तो उनको इतने भी आ जा करे पाकिस्तान की टीम की शामिल हो जाए, आगे साढ़े को बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर ने people are, और लोग बड़े शौक न किताबा पढ़ते हैं, जस्मान तो चुकी गई, फलाने बड़े खादिम ने रिकमेंड किया, तो एनालिसिस से करो, बाइबल तो देखो कहाँ बाइबल लिखा, और उस ऊपर क्या क्रिकेट खेलने, बताओ तो जी होता क्रिकेट ही ऐसे होता है, इतना मुस्लिम ने जस्म होता है, ने बात सीखी है, कई ये हो जाए तर्जुमे करते हैं, जी होता तो क्रिकेट होता है नहीं, तो जस्म ने बात सीखी है, मैं कहता बंदा क्या वो क्रिकेट खेल, दूसरी से खेल, अरे ऊपर ऐसी चीजें देखी जिनका बयान करना मुनासिब नहीं है इंसानों से, गहरी बातें, गहरे मुकाशफे, और बेसिकली क्या देखा, अपने खुदावन का जलाल, उसका बाप और बेटे का जलाल जितना बयान करता है, पता लगता है जन्नत में गया था, वाकई गया था, सारों की जन्नत नहीं मान जाते थे, पर हर की जन्नत ही फर्क है, वो दया क्या कहते देखा जी इन्हों का दिमाग खराब होता है, एक बीमारी होती है, हर एक नजर आ जाती है, तनवाह होगा, वो मैं सुन रहा गलवा रहे खुले आकर मतलब बन रहे दुनिया के विद्यार्थी सारे बदमाश बदलते जा रहे हैं, एक मतलब बन रहा है कि खुदा को नहीं एना दिमाग खराब होता है, जेडे बीएन में ने फिस्ते रहते दिमाग हो जाता है, इसके नाम बदल हम के लिए काम करते, हम साबित करेंगे यीशु के लहू से और आप सबकी दुआओं से, आप खुदा के कलाम से और की कुदरत से, आमीन। जब हमारा खुदा सिर्फ रिश्ता नजर ही ना था, रिश्ता काम भी करता, काम के नजर मुआवजा भी हो जाता, करोगा तुसी भी करो, मेडिटेट करके रहा है कि मुर्दा जिंदा करो, तो करके दिखाओ, मदद तो आया ना, तुसी भी रसौली गायब करके दिखाओ जी, मेडिटेट की है तो रसौली गायब हो गया, करके दिखाओ, गलना ही है ना सर, साइंस बन रही है, दहरिए हो रहे हैं, ताटे बड़े बड़े खादम, ताटे बड़े बड़े जेड़े भाई थे हर तरह के, चलो जी वो सारे ही बढ़ते जाते, खुदा बोलनी अखलाकियत अच्छी है, इंसानियत अच्छी है, इस पर हम किसी बार फिर बोलेंगे, ये इसकी समझ आ रही है ना, जब आपने ऊपर जाना है तो फिर इस बदन के साथ में यीशु अपना ही खून लेकर कौन से बदन के साथ ऊपर गया, बदन कहाँ था, स्लीपर, स्लीपर मर गया, बदन स्लीपर बाद में कहा चला गया, कब्र में रख दिया गया, लेकिन वो खाक नहीं था, क्योंकि वो खाकी नहीं था लिखा, वो आसमानी था, तो उसने खाक इससे किया था, इस पर भी एक अल्लाह का टॉपिक मैं निकल जाऊंगा, गॉड ब्लेस यू। आप समझ आ गया, अब वो रूहानी बदन के साथ बाप के पास गया अपना खून लेकर, आमीन, रूहानी आलम में, इस बाप को कहा मैंने कीमत अदा कर दी है, कौन से आलम में गया, रूहानी आलम में, आसमान पर, इसके लिए भी मैं खोल रहा हूँ तीसरा आसमान, और इधर मेरी बुक में आ रहा है, बस 2 चैप्टर है कि दुआ करो मैं मुकम्मल कर सकूँ उसको सेकंड कमिंग के ऊपर। याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी 3 मतलब तो काफी क्लियर हो गया ना कि रूह हमारी जो वो रूहानी आलम में काम करने के लिए, समझ आ रही है ना, और जो जिस्म है वो दिया है दुनिया में काम करने के, जान जो है वो आपकी असली पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी को तब्दील होना पड़ता है, गुनाह में गिरने के बाद इस बार कब्जा शैतान का हमने करवा, और इस वजह से हमारी जान जो है, हमारा जो जिसे पुरानी इंसानियत कहते हैं, ये कहते हैं वो जान की फिक्रें फर्क है, आदतें फर्क है, सोचे फर्क है, सारे के सारे गुनाह मैनिफेस्ट नहीं करते, आदम से वो बीज तो हमारे अंदर आ गया है, लेकिन वो बीज जो है वो उसमें बेशुमार फल लग सकते हैं, एक ही बीज में, गुनाह के बीज में, जो आदम की पुरानी इंसानियत से, अब उसमें चोरी भी है, बदकारी भी है, लड़ाई भी है, ज़नाकारी भी है, भय भी है, वो सारे गुनाह है, सबके झूठ भी है, लालच भी है, ये भी है। अब आपका बीज कौन सा होता है, जिसको उसी तरह का माहौल दिया जाए। याद रहे बीज सारे नहीं होते, बीज वो होते हैं कि जिनको क्या दिया जाता है, पानी, रोशनी, मिट्टी, ये सारा, फिर वो होते हैं। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो बीज ज्यादा उगेगा जिसको पानी मिला। अगर आप यूरोप में पैदा होते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां जो यूरोप में पैदा होते हैं, वो उस माहौल में डेवलप होते हैं, उनकी जो आदतें हैं उनमें ये बदकारी करना, ना करना उनके लिए नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो उस माहौल, उस गुनाह को आजादी दी गई है। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां हम पर भी, हम जो आते हैं समाज पे आते हैं, कंट्रोल हमें पता है, नहीं 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 ऐसे नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, सब कुछ उनमें भी है, हमने भी है,
اس لیے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں چوری کون کرے گا؟ چور میرے ساتھ پریکٹیکل مطابق بہت سارے ہوئے بڑے میں روزے دعا کرتا تھا بڑی زندگی گروپ سے معمول تھی اسمان پہ جاتا تھا گروپ تو پھر آ ہی جاتا آپ کو ساتھ سے آنا نہیں چاہیے اس لیے تو کل اس کو بھی کر دیجیے کوئی جاتی میں اتنا جا رہا میں نے بات مجھے عادت ہے دیکھ لیا میں کوئی گناہ نہیں کر رہا لوگوں کی پرانی انسان دیکھنا میرے پتے کے گناہ بھول گیا چند دن کا بعد میں اتنے میں جا رہا کوئی چیز پڑی میرے دل کا چوری کرنا نہ زندگی کبھی چوری نہیں کی میرا دل کر چرا کیوں ہوتے ہیں دل کر کے چوری کر میرا بہت پریشان کہا تمہیں کتنی بڑی سماش ہے میں دل کر میں چوری کر کون جو پھر ہوا میں کہتا ہوں میرے میں تو گناہ دیکھو میں سوچ میں آ گیا پتا لگا تو کرنا کیا ہے پتا ہو تو لگا کہ جب کھانا نہیں آگا چوری ہو تو کرے گا سچویشن پیدا ہوتی ہے اور شیطان اس کا پیدا اٹھاتا ہے پرانی انسانیت میں اس میں پنپتی ہے اختلاف ٹھیک ہے اس میں بڑھتی ہے ترقی کرتی جب آپ کے ناظر آ گیا خطرے میں آ گیا لکھیے آپ نے کلام میں بیٹھنا خطبہ میں بیٹھنا خدا مجھے بچا یہی وہ وقت اور بڑے بڑے خاتم جب ان کو وہ اجازت دیتے ہیں ہم سوری ٹو سے میری بہنوں میں بہنیں بھی ایسی ہیں آپ نے پار کی وہ کہتے ہیں کوئی کر نہیں کہ یہاں کل یہاں دعا کریں گے بندے نہ کوئی کر نہیں پتا لگا تھوڑی دیر بندے چھڑ کے نہ بچ بڑے بڑے خادم پچ چنگے بلے ٹھیک ٹھاک ان کے کیونکہ انہوں نے ماحول کو موقع دیا اس سن کو جو ان کے اندر تھا تو نے بھی ایسے کیا نا اس کو جنگ بھی ہونا چاہیے یا نیچے بیٹھ کے دعا کرتا کہ جنگ کرنے گئے کیا خیال تو کیا کر رہا تھا اوپر سیر کر رہا تھا اور شیطان کو موقع مل گیا میرا خیال ہے کہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا تو وہ پاک ہو کے چلا گیا اوپر لیکن سب کو سیکھ سکتے ہیں نا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا سمجھ چاہیے جلدی نہ پلے اندر رونڈا پہ پوچھنے دے بعد ہو جاتا رونڈا خدا میرے اندر پاک دل پیدا کرنے کو چنگی آئیاں پڑیاں نے مینوں بھی دکھ پئی ہوئی شیطان نے پکڑ پھر انہیں پلاننگ کی تھی اور پھر وہ پلاننگ پہ پکڑا اس کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان کے اتنے بڑے نبی پر جس کی ہم قریب سے بھی نہیں گزر سکتے ایسا پرستر ایسا قدرت والا ایسا خدا کا قریبی جس پہ کلام اترتا تھا جنگیں لگتا تھا مسا ہوتا تھا اور خدا نے کیا کیا اس کو جب ٹھیک تھا کیا کہا تھا ہمیشہ ہی رہا کیا نے کہا یہ میرے دل کے وافق مجھے ایک شخص کدوں کیا سی بولو خادمہ بڑے بڑے تعلیم دیتے رہتے ہیں میں سکھاؤ ہوئے کدوں کیا سی بولو نا کدوں کوارا سی جدوں صحیح سی جدوں خدا نو پیار کرتا وہ تو دل کے وافق بھی جدوں چوریاں کرن ڈے تے لڑائیاں کر کئی چیزاں کے کلام تو باہر جاندے ہے اسٹڈی کرو پوری وہ تو وہ خدا کے دل کے موافق کیا جب وہ اس عورت کو لا رہا تھا یا اس کو قتل کرواتا تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا بالکل نہیں تھا بس ایک کوئی پھڑ لیا وہ دو منگلو دل کے موافق ہو دے میرے سارے کام کریے تو تہذیب کرے ارے بھائی ایسا نہیں ہے آپ کی حالت ہوتی ہے ایک وقت ہو سکتا آپ بہت خدا میں ایک وقت ہوتا ہے سماج میں گئے ایک وقت ہو سکتا آپ گمراہ ہو جاؤ ایک پلوس کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کر کے خود نامقبول اوروں کو بچا لیا بڑے خاتمہ نہیں جو ہے ہزاروں بچائیاں 500 بچایا 5 لاکھ بچائے بڑا کام ہے آخر جا کے سماج کے گھر پیسے پرانے آدمی کسی ہونا بھی ایسی دسو جلدی نہ کسے ہونا ہوا سی کہ نہیں ہوا سی یہ کس کے ساتھ سمسون کے ساتھ شکر ہے مرن تو پہلے توبہ کر کے بچ گیا کیا دنیا کا عقل مند ترین کیا نام ہے اس کا سلیمان خدا سے باتیں کرتا تھا الہامگاہ بنائی تھی خدا کے ساتھ چلتا تھا لیکن جب بادشاہ بن گیا پہلا ہی کام کرتے ہیں خدا نے منع کیا سے غیر قوموں نے جاتے پہلا مصری اور خدا ہے فراؤن کی بیٹی کے ساتھ ڈاکٹر بھولیاں بڑیاں ہوں گی ایسی مصری انہیں کیا وہ بھی آپ کر لیں گے نہ دوستی ہو جائے گی بندہ خدا کا ہے کلام سے باہر نکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو جذبات اور یہ چیزیں ہیں شیطان کو استعمال کرتا تھا جب آپ سماج میں آئے آگے آپ نے پڑھا نا اس کا کہ پھر اور کر لی منی کر لی فلانی کر لی غیر قوموں سے پھر کیا لکھا اپنا زندگی آخرکار ان کا عورتوں کا دم بننے لگا کہنے لگا خوش ہو کے نہیں میں نہیں کرنا مانتی تو ہے کچھ جانا ہے بڑی ہے نہیں میرا دربار میں آئے تھے مانی فلانے مرکوم نے تو فلانے تو فلانے ہیں تو میرا مندر ہی بنا دے گا انہیں پیار کرنا چاہیے کوئی بات نہیں پیار بڑے نے بنا دیں
फिर उन्होंने कहा तू मैं ना चाहता ही नहीं, मैनू ले जाना है, आपकी नहीं मेहरबानी। उन्हीं का दाम बढ़ने लगा, कुत्तों को मारने लगा। क्या खुदा का बंदा जो बहुत पहुंचा गिर सकता कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है। ये बाइबल में बच के रहना है। बहुत बताता हूं मैं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का दान, आखिरी दम तक। आजमाइशें आएंगी, आती हैं, आती रहेंगी। आजमाइशें नहीं खुदा बंद करता, गुनाह नहीं खुदा खत्म करता। गुनाह खत्म करेगा जब यीशु मसीह आ जाएगा, 1000 साल में भी पूरा नहीं खत्म होगा। याद रखना, सिर्फ खुदा की बात के लोग दबदबा होगा, दूसरे मतलब ही होंगे। ये गलत टॉपिक है, किताब में पढ़ लेना जब आ जाए, बता दूंगा हवालों के साथ। लेकिन जब ये आसमान और ये जमीन जला दिए जाएंगे, नए आसमान और नए जमीन में क्या बसी रहेगी? रात वाली बसी। आमीन। वहां पर गुनाह, वहां पर क्या होगा? खुदा खुद होगा और हम उसके साथ होंगे। फिर हम पर न शैतान को कोई इख्तियार, ना गुनाह का कोई इख्तियार। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, खाना तैयार हो गया? 10 मिनट आप ठीक है जी। समझ आ गई बात की? पूरी समझ आ गई है? इसलिए बचना है। ये रूजन बदन, सॉरी, ये रूजन बदन जो है, ये याद रखें कि ये बहुत गहरी श्रेणी है। एक बंदा रूहानी हो सकता है, में हो सकता है, नियमों के साथ हो सकता है, और मरने से पहले वो गुमराह हो सकता है। कई खादमों पर एंड पे बहुत हमला होता है। याद, जैसे जैसे बुढ़े हो गए, शैतान कई तरीके इस्तेमाल करेगा। आपको स्मार्टफोन में डालेगा, बच्चों की तरफ, दूसरों की तरफ, पैसों के वसीले, आजकल मॉडर्निज्म के वसीले। फिर दूसरा ने देखा वो ब्रांड को ना, सी ब्रांड पाइए। हम ब्रांड आए कि कितों साड़ी ते ब्रांड वाले बात ही नहीं है पैसे को। हम फिर यही कहिए कि इधर तो खिंची के पैसे कितने कितने कहे खुदा ने मैंने क्या कि खुदा ने मुझे फरमाया, खुदा यूं फरमाता है, किसे पुराने डिजाइनर के कपड़े लेके दे। आज भी मैं देखा जी, अपनी नबूता करके लोगों को गल्ला बना दे रहे। मैं जानता हूँ लोगों नबूता करके खुदा ने मुझे ये फरमाया, अपने खादिम की इज्जत किया करो, पावे जो मर्जी करिए। आपको किसने दिखाई? आप अपने लिए नबूत नहीं कर सकते, आपके लिए खुदा बोले लोगों से। आज खुदा का नाम करें और दूसरे नबियों के वसीले से कलाम। किसी को ख्वाब में खुदा दिखाए, किसी को रोया में दिखाए, किसी को कहे कि वाकई या आपको मनाने की जरूरत नहीं है, वो मनाता है। हालेलुया। अगर आप मनाने की कोशिश करें, समझे आप में कोई शरारती लोग आ गई है और आप गुमराह हो, तो क्या आप लोगों को अपने लिए कायम करने की कोशिश करें? क्योंकि आप गलत लाइन में चढ़े तो फर्क है, क्योंकि आप अपना पेश करें। Then you will allow the Lord, खुदा से बात करोगे, 1000 बार मेरे साथ ऐसे। I was crying, मैं एक दिन बैठा था, बहुत पैसा मुझे लग गया, बड़ा पैसा मिला। मैं गवर्नमेंट में था, मुझे रिटायरमेंट पे काफी पैसे मिले, लाखों में। मेरे जुड़ गए। मैं बैठा, बड़े लोगों को बांटे, मैंने बड़े लोगों की मदद की। मैं बैठा रो रहा। जनवरी का महीना था, मेरे बेटे ने कहा कि 1 लाख रुपया मुझे सेमेस्टर की फीस देनी है। मैं बैठा दुआ कर, इतना मैं रोया ना। मैं क्या खुदा, मैंने लाखों में लोगों को दिया, जब मेरे बेटे की बारी है मैंने तेरे नाम से, तो मेरे बेटे के लिए मेरे पास पैसे ऐसे ही हुआ। मैं अकेला बैठा, बहुत बड़ा। मैं कहा खुदा, मैंने क्या किया? जब मेरी बारी है मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? मैं मांग भी नहीं सकता, मैं किसी को बताना भी चाहता। लोग समझते हैं मेरे पास बड़ा पैसा हो, उस वक्त समझते होंगे। मैं दुआ कर रहा था, मैं रोना था, यकीन जाने। कुछ देर के बाद एक बंदे ने मुझे फोन किया, कल आपको मिलना चाहते हैं पाकिस्तान। कहते यार वो फलाना था, आपकी मीटिंग में आता है, तो वो बिजनेस मैन है, उसको काफी पत्थर बड़ी दिया आपकी दुआ से, बड़े मोजे हुए हैं, उनके बाकी उनकी आंखें भी खुल गई थी। तो उसको खुदा ने कहा कि आपको 1 लाख रुपया दे। मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं ऐसे करता, वो मैं नहीं कभी। हाँ, हम जरूर थे, कभी कभी भाई भी रियाकार होते हैं, खासकर पाकिस्तान बहुत रिया। बात ये ध्यान न सुने, घर च जान के अपनी इज्जत दिखा देता है। भाई जी रोटी खा दीजिए, हाँ बस खा के आया। झूठ बोलने भुख लगी, कहता कदे बात के रख दे, चलता मैं झूठ बोल देते हैं। भाई मैं तो अगर कहता पानी पीना तो मैं कहता पीना, ठीक है, नहीं पीना तो नहीं पीना। कलामी क्या लिखा, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। भाई साहब खाना तुसी भी पादियों को ट्रेंड करो। सच बोलना कोई गुनाह नहीं। आप थके, मैं किसी वजह से आया नहीं खाना खाया, तो भैन जी अगर है Why you tell lies? Don't tell lies. झूठ ना बोलो, ये भी झूठ है।
रियाकारी है तो रखे किया जो पैसा ना हो। अगर खुदा किसी को कह रहा है तो खुदा तो क्या है, अगर तो खुद तक नहीं पूछा तो हमें नहीं दे दे करो। खुदा बोला है मैं मर चलीजिए, मैं मर चला जाए, ये आप गलत लोग हैं, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करें, आप बर्बाद हो जाएंगे ना। आप आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जो खाता दुनिया का, मैं दुनिया को सुना रहा हूँ, जो ऐसे कर रहा है अमेरिका यूरोप सारी जगह बर्बाद हो, एंड में आके पता नहीं करके लैंड कर। आस्क गॉड, आपका मेरा बाप कौन है? यहोवा खुदा, क्या नाम है उसका? यहोवा यरी। किससे लेना है? खुदा से लेना कि खुदा ने बुलाया। आखिरी बात खुदा मेरे दिल में डाल, बिना करण ने लाहौर कन्वेंशन छिपाया हुआ था, मैं उस मीटिंग में था। उस टाइम में जब आसमान पे गया, मैंने वहां पर बाप बेटे रूह की उसको देखा तब पे, और पाक की मैं वो एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, किताब में जब उसमें था, मैंने उस वक्त सुना, लाइव सुना उसको। कैनेडा में ऊपर गया तो मैंने खुदा को रोकता, जो मैंने कहा खुदा वो आसमान अब्बा जी, आसमानी बाप, यीशु मसीह आप क्या करते हैं? आप अपने खातों को निकालते हैं खिदमत के लिए, और फिर वो भूखे मरते रहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात, 10 या 15 साल 20 साल पुरानी बात आया था, और कन्वेंशन पे कितनी उसने कहा जब आसमान में तो खुदा ये मेरे तू बंदे ने कहा था रोही जाऊं खुदा मेरे तेरे खातों भूखे मरन दे, पहले बुला लेता फिर उनको खाना नहीं देता, भूखे मरन दे। उसने कहा मुझे खुदा ने कहा जो भूखे मरते हैं उनको मैंने नहीं बुलाया, जिनको मैंने बुलाया है उनका जिम्मेदार मैं हूं। मैं 15 साल हो गए खुदा के कहने में मुझे लग रहा है यीशु कहता छोड़ दे, मैं यीशु का होना पूरे नहीं होते पड़े करना है 2-4 साल लोग एक महीने नोटिस देता, बड़ी मुश्किल है जांच रही है। जिसमें मुझे प्यार बड़ा करता था, बहुत प्यार करता, मुझे बुलाता था, कहते क्यों छोड़ रहा? फिर मैंने उसे देखा, वो मेरी मीटिंग में आता था, मुझसे देखे था यूपी का, मुझे कहता मैं मानता हूँ, छुट्टी मुझे दे देता, किसी को दे देता, ये प्राइवेट नहीं देती छुट्टी, मैं टीम में चला था। कहता है पैसा तुम कौन देता है? मैं मुझे खुदा देता है। कहता कौन सपोर्ट करता, तू क्या करेगा? कहाँ? मैं मुझे खुदा करेगा। कहता कैसे चलेगा? मेरा खुदा नहीं देगा। फिर मैंने उससे ईमेल देखी, यीशु मुझे नजर आ गया, जब मुझे उसने निकाला 15 साल हो गए, आज तक कमी नहीं आती, दाया जरूर मैंने किया है, मुझे मेहनत करना नहीं है, वो मेरा कसूर है, वो खुदा का कसूर है। He will, if he has called you, he will provide. ये मेरे अल्फाज थे, ये भाई दिनाकर के कहता खुदा ने मुझे, अगर आप खुदा के साथ सही प्रोवाइड करेगा, करता कि नहीं करता? कि अगर आप में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो आप मिसमैनेज कर रहे हो मनी को, बहुत सी बड़ी बात। मेरे पास भी कभी कभी पैसे नहीं होते तो मैं होता हूँ, तो हम होते से खुदा को टखा अभी भी नहीं अपना लाइफ मैनेज करना भी सीखो। मैंने करनी है, खुदा ने मुझे पैसा दिया, मैंने मैनेज किया, मैंने फ्रेंडियों को दे दिया, उनको दे दिया, धोखे में आ गया। आई हैव टू मैनेज। इसलिए कोई समझ लें कि आपने खुदा के कलाम के मुताबिक आपने रूहानी आलम में एक हवाले पर सिर्फ 2 दिन सिर्फ पढ़ा। आज जरा पढ़ लीजिए जो बात मैंने आपको कही है, हवाले जरा पढ़ लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि रूह जल बदन ये अभी चलेगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा तफसील है पूरी। टाइम 5 मिनट रह गए हैं, बल्कि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हम जल्दी से आपको पढ़ा देते हैं। इब्रानियों 4 बाब की 12 कोई निकाल लें जल्दी से। ईसाया 57 बाब 16 कोई और निकाल लें सामने से जरा प्लीज 1 by 1। हाँ भाई साहब आप निकालें जरा प्लीज। हाँ जी। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंधन और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मैं इस शायद की तशरीह नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें 3 लफ्ज बोल दीजिए। किसका जिक्र है? रूह का जिक्र है कि नहीं? रूह में से गुजरता खुदा का कलाम, फिर आगे क्या है? जान में से गुजरता, आगे क्या है? बंद गुजरिए क्या है? बंद की ओर जो बदन में से। आमीन। आपकी रूह जान बदन में खुदा काम करता है, आपके रूह जान बदन में खुदा अपने मसा को लेता है। खुदा पर वो आपकी जिंदगी के हर पहलू में जो आपकी कंप्लीट शख्सियत है, आपके अंदर रूहानी और जिस्मानी से काम करना चाहता है। आज बच्ची से दूसरा पढ़ दीजिए। पहला तस्लीक के 5 बाब 23 शायद किसने डाला? ये पढ़ लीजिए, सॉरी ये तो पढ़ लीजिए, सॉरी ईसाया 57:16 जी। लूका 1:46 की निकाल लीजिए। ईसाया 57:16 बेटी किसने निकाली? पढ़ दीजिए बेटे। क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा, सदा गजबनाक न रहूंगा।
इसलिए कि मेरे हजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की है बेताब हो जाती है। आमीन। रूह और जान का जिक्र है, शायर ने किया, रूह और जान बेताब हो जाते हैं। याद रखा आगे लूका 1:46-47 से बड़ी मशहूर है। इब्राहीम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। आमीन। जान का जिक्र आ गया, मेरी जान खुदावन की, आगे जल्दी से, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। हालेलुया। मुनज्जी का मतलब याद देने वाला, सबको पता। आमीन। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से, रूह का जिक्र आ गया। मरियम जिस्म रखती थी कि नहीं रखती थी? हो गया रूह जान बदल मुकम्मल, उसमें था। आगे पढ़ लीजिए आप ही बस, फिर एक और सवाल आपको पढ़ाना, फिर उसके बाद पहला करंथियों यानी करंथियों के नाम पुस्तक का पहला खत, उसका 7:34 है। 7:34 है जी हाँ। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शोहर को राजी करे। ये हमारा लेडीज का या शादी का टॉपिक नहीं है। क्या आप सीख रहे हैं इसमें? क्या देगा वो, उसका रूह और जिस्म दोनों किस चीज में रहते हैं कि वो पाक हो खुदा को खुश करने के लिए। मैंने जिक्र किया था रूहानी जिस्म का, उसका मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। पहला करंथियों 15 बार नोट कर लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिए। 44 आयत से 15:44 है। ध्यान से सुनना। नफसानी जिस्म बोया जाता है, जिसको हम जिस्मानी जिस्म भी कहते हैं, ये बड़ा मट्टी वाला, और रूहानी जिस्म जी उठता है। आमीन। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। मैंने भी जिक्र किया ना कि आपकी जान जब रूहानी जिस्म में जाती है, फिर वो रूहानी आलम में काम करती है, आसमान पे भी जा सकती है, मूव भी कर सकती है रूहानी। समझ आ गई बात की? और उसके बाद नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था, यानी आदम की बात हो रही है। इसके बाद रूहानी हुआ। हम पहले क्या थे? आदम के नस्ल से, हम खाकी थे। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, यानी खाक के बने हुए। आमीन। दूसरा आदमी क्या था? दूसरा आदमी आसमानी था। कौन? यीशु मसीह। वो आसमान से नीचे आया, आसमानी है, वैसे और भी आसमानी है। अब जब हम उसकी सूरत पर बदल जाएंगे, जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया। फिर हम आसमानी बन जाएंगे, रूहानी हम इस दुनिया में बनेंगे, और जब हम उसकी इस तरह बन जाएंगे, वो हमें ले जाएगा आसमान पर। हालेलुया। खड़े हो जाइए। हालेलुया। अगला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 10 या 15 मिनट तक बोलूंगा, उसके बाद आपको नाइट किया जाएगा। आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि उसका सेशन हैवी है बहुत। तो उसमें हम अगर रूल कुछ कहेगा, प्रोफेटिक आएगा तो जरूर करेंगे। मे बी आई डोंट नो हाउ द होली स्पिरिट लीड्स, मुझे नहीं पता, मुझे 1 मिनट पहले नहीं पता। तो स्पेंड करता है कि खुदा का पाक कैसे। सो आई डोंट मूव, आई डोंट प्रे हाउ आई वांट टू प्रे, हाउ आई डिसाइड टू प्रे। मैं होली स्पिरिट को मौका दूंगा। आप भूखे होंगे, खुदावन आपको छू सकता है, टच कर सकता है, नाइट कर सकता है, बोल सकता है, प्रियन आ सकती है, यीशु नजर आ सकता है, फरिश्ते नजर आ सकते हैं। अगले सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूं, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरे बच्चे मुझे सेट कर देंगे आपके लिए, और फिर मैं चलूंगा। हालेलुया। इसलिए खुदा आपका अपने हाथ उठाइए, खुदा का शुक्र करना शुरू कीजिए। होली स्पिरिट का शुक्र जो माहिर उस्ताद है।